everyone. Start करते हैं. First of all, thank you all for joining us in our live webinar by Z-Order for the first time. In this webinar, we will specially address all the issues that are faced by retailers with regard to upcoming GST regulations or which has been already imposed by the government. Right. So thank you us for joining. We are thrilled to have you here. My name is Nitika and I am working with Z-Order at a capacity of finance manager. As we are already aware that the retail businesses faces many uncertainties due to complex and evolving regulations of the government, like invoicing and audit trail. As we know, like government has imposed e-invoicing from 1st of August for all the businesses that have over more than 5 crores. And also we know that from the 1st April 2023, the audit trail has been imposed by the government. Like we need to record all the accounting transactions in the accounting systems, right? So in the connection to all these regulations, to help retail businesses navigate all these challenges and to comply with e-invoice and audit trail requirements, we have invited our two experts with their insights and advice in this live webinar. So I am honored to introduce you all with our two speakers for today. Firstly, we have Mr. Manish Kumar Sinha, which is CA as a profession, a GST expert, business coach, and a mentor for all entrepreneurs and startups. Explain us the latest updates on GST regulations, especially e-invoice system, which is applicable for businesses from 1st of August, and audit trail, which is already imposed by government from the 1st April 2023. Secondly, we have Mr. Roshan Kumar, who is an ERP expert having more than 20 years of experience in implementing and managing ERP solutions in the retail industry. He will share with us some best practices and tips on how to optimize their order ERP for maximizing efficiency and productivity and to attain optimum success. So I am sure by the end of this webinar, you will all have a clear understanding of GST regulations imposed by the government and how to comply with them in a better way. So during the session, if anybody have any questions regarding the topic, so kindly please mention in the chat box so that each and every question will be taken up by Mr. Manish Kumar at the end of the session one by one. I will like to invite Mr. Manish Kumar Sinha sir so that he will guide us about GST regulations. So once again, thank you all for joining us today, and I hope you will find this webinar valuable for your retail businesses. So thank you once again, and I would like to invite Manish sir to continue this webinar further. Thank you, Nitika. And if it is possible to make me co-host. Yeah. So good morning, everyone. You can say it is a good afternoon, but in business, हमेशा good morning ही होना चाहिए. Okay. So it is a good morning first of all. Or as the Nitika has told you, कि by profession I am chartered accountant. So I have some experience. I can say only the some experience. So whatever you have the question, आप लोग उस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर या अपने डायरी में या चैट बॉक्स में आप डालते रहो, सो दैट कि ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन अगर मैं आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाता हूँ, देन एट द एंड ऑफ सेशन हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे और जो भी आपका सवाल होगा वहां पर हम सारे सवालों का लेट मी ट्राई टू कंक्लूड एंड गिव द आंसर सबसे पहले. एंड
और इसी बीच में इफ यू थिंक कि देयर इज सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको उसी समय पूछना है, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क और यू कैन राइट योर क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। सो अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वहीं पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। I hope my screen is visible to everyone. Yeah. Yes. So, yeah. तो ऑडिट ट्रेल और ई इनवॉइसिंग दो एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है दैट इज द गिविंग द प्रॉब्लम फॉर द एवरी बिजनेस ओनर एज वेल एज द अकाउंटेंट। अब जस्ट आई एम गिविंग द वन एग्जांपल कि एक छोटा बिजनेस ओनर जो जिसका टर्नओवर लेट्स से जो 10 लाख 20 लाख 25-50 लाख होता है, तो जनरली वो क्या करते हैं, एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट को रखते हैं और कहते हैं कि सप्ताह में 1 या 2 दिन आ जाना है या डेली बेसिस पर 2 आवर्स के लिए आ जाना और दिन भर का जो भी एंट्री है आप वो पास कर देना। तो व्हाट हैपन कि ऑडिट ट्रेल में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होते रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहती है। तो अब कर दिया है ऑडिट ट्रेल कि अगर आपने कोई चेंज किया है या कोई ऑल्टर करते हो तो वो सारा का सारा यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन अगेन, यू हैव टू गिव द अगेन इंफॉर्मेशन कि ये चेंज आपने कब किया या एंट्री कब किया। पता चला कि ट्रांजैक्शन आज हुआ और एंट्री आप 2 महीने बाद कर रहे हो, 3 महीने बाद कर रहे हो। जनरली कुछ केस में तो ये भी देखा गया कि सारे बुक्स को सीए के यहाँ पहुंचा दिया जाता है एट एंड ऑफ ईयर और वहां पर बोला जाता है कि वहां पर बोला जाता है कि सर अब आप ये चेंज कर दो। तो यहाँ पर एक ये इशू आता है। तो इस तरीके से वी हैव टू सी कि ऑडिट ट्रेल इसीलिए गवर्नमेंट ने लगाया है कि जहां पर साल के एंड में जाके सारे चेंजेस करने होते हैं, कंप्लायंस करने होते हैं या एडजस्टमेंट करने होते हैं, तो गवर्नमेंट कहता है कि हमने अब आपके सिस्टम में ऑडिट ट्रेल लगा दिया है। अगर आप कोई एंट्री रिवाइज करोगे, डिलीट करोगे, उसका मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड टुडे यू हैव टू मेक द एंट्री और वी आर मेकिंग एंट्री आफ्टर 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर, देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन आस्क क्वेश्चन टू यू कि बिजनेस आपका डेली चल रहा है तो आप 1 महीना या 2 महीने बाद एंट्री क्यों कर रहे हो। तो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑडिट ट्रेल। सेकेंड थिंग, एज बीइंग द बिजनेस ओनर या आप अकाउंटेंट हो तो आपको ऑडिट ट्रेल से डरना नहीं है। सिर्फ आपको ये करना है कि जो भी सिस्टम आया है दिस इज द गुड सिस्टम, बिकॉज यहाँ से जो आप अकाउंटिंग एंट्री ईयर एंड या क्वार्टर या 15 दिन पर करते थे, नाउ यू हैव टू डू ऑन द डेली बेसिस और मैक्सिमम 1 and 2 days लेटर। तो इट इज अ गुड थिंग फॉर यू। हाँ, माइट बी पॉसिबल योर कॉस्टिंग कैन बी इंक्रीज, लेकिन ये अच्छा इसलिए है कि सपोज दैट आज आपने यू हैव मेक द सम पेमेंट लाइक 10,000, 1,50,000 या यू हैव रिसीव्ड सम पेमेंट फ्रॉम समवन। तो अगर 1 साल के बाद अगर आप मेरे पास सारे बुक्स लेके आते हो, मैं पूछता हूँ कि सर ये 75,000 किससे आया, देन वी आर नॉट एबल टू रिकॉल कि वो कौन बंदा था। हो सकता है कोई नया कस्टमर आया हो, 75,000 देके सामान लेके चला गया हो। लेकिन अगर 2 दिन के बाद मेरे यहाँ से कोई अकाउंटेंट या मेरे टीम से कोई पूछता है या इवन मैं आपसे पूछता हूँ सर ये पैसा कहाँ से आया, देन यू कैन इजिली रिकॉल, अरे यार 75 तो मिस्टर एक्स ने दिया था सर, इसको एडवांस मान लो, लोन मान लो, इनकम मान लो। ओके, ये हो सकता है 6 महीना साल भर के बाद प्रॉब्लम। तो दिस इज द गुड थिंग। तो आप इसको ऑडिट ट्रेल को नेगेटिव लेके नहीं चलना है, यू हैव टू टेक इन द पॉजिटिव वे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो एक बिगेस्ट प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है ई इनवॉइस, कि जो अभी तक 20 CR तक के बिजनेस ओनर के लिए ई इनवॉइस कंपलसरी था, अब उसको 1 अगस्त से कंपलसरी कर रहे हैं 5 करोड़ के टर्नओवर पर। और अगर आप ट्रेडिंग में हो तो 5 करोड़ का टर्नओवर होना कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक मंथ का 40 लाख रुपया ऑन एवरेज, 40-45 लाख रुपया। तो मंथ का 40-45 लाख रुपया किसी भी शॉप में होना, एक अच्छा सा शोरूम है तो आम बात है। इट मीन्स कि जितने भी आप लोग यहाँ पर हो, तो मैं एज्यूम करके रखता हूँ कि अगर आप 20 करोड़ में पहले से इंक्लूडेड है इट्स ओके, अदरवाइज अब तो आप इंक्लूड हो ही रहे हो। तो टुडे एक और चीज है, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर नहीं जाऊंगा आज। कम से कम अगर आपको टेक्निकल में कोई क्वेश्चन है लाइक कि सर रजिस्ट्रेशन कैसे करें या रजिस्ट्रेशन में कोई इशू आ रहा है, तो आई हैव द ओनली वन आंसर। जो आपका पोर्टल है, पोर्टल में कस्टमर केयर का नंबर है, वहां पर आप बात कर सकते हैं या आप बाद में बात कर लेना। आज हम एक्ट की बात करेंगे या जहां जहां प्रॉब्लम आएगा, जैसे कि एक बार हमने ईबे इनवॉइस क्रिएट कर दिया तो वेदर आई कैन एडिट और नॉट, हाउ वी हैव टू कैंसिल। तो जो
एक्ट है, जो रूल कहता है, आज हम उस पर बात करेंगे। फिर जो प्रैक्टिकल इश्यूज है कि सर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, ओटीपी नहीं आ रहा, वो आ ही जाएगा। आप किसी से बात करोगे या एक बार करोगे, 2 बार करोगे वो, लेकिन जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गाइड करने जा रहा हूँ, वो इस पर है कि एक्ट क्या कहता है, रूल क्या कहता है और गवर्नमेंट क्या कहती है। तो सबसे पहला है कि क्या हम इस ई इनवॉइस के का जो इशू है उसको हम रिमूव कर सकते हैं? तो रिमूव नहीं हो सकता है। रीजन इज दैट कि 1 अगस्त से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी बोल दिया कि एवरी बिजनेस ओनर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, आपको इनवॉइस रेज करना है। तो इट मीन्स कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आप इससे हट नहीं सकते। हाँ, रिमूव क्या कर सकते हैं कि हम इसको अपने सिस्टम में ले आए, सो दैट इजी हो जाए और हमारा काम आसानी से हो, ताकि कल को कोई भी डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट अगर आ जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कल को रेड करने आ जाता है, तो नोबडी कैन क्लेम कि तुम्हारा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था और यू हैव नॉट प्रोड्यूसिंग एनी ई इनवॉइस, तो हम आपके ऊपर 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख का पेनल्टी लगा देंगे। तो हम इस सिस्टम से बाहर तो नहीं जा सकते, लेकिन इस सिस्टम में हम अपने आप को इस तरीके से अपडेट कर ले, काम कर ले, सो दैट ये हमारे लिए इजी रहेगा। तो ये ई इनवॉइसिंग एक ऑब्लिगेशन एक तरीके से है, लेकिन ये आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि आपको बाद में एडजस्टमेंट ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो एडजस्टमेंट करना आपको प्री प्लान करना पड़ेगा, पोस्ट प्लान नहीं किया। 1 मंथ बीत गया तो अब हम सेल परचेज का क्या ट्रांजेक्शन घुमाना है, नहीं करना, यू हैव टू मेक द प्री प्लानिंग। तो आज हम 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इनवॉइस, ऑडिट ट्रेल एंड ऑब्वियसली बात है व्हाटएवर यू हैव द क्वेश्चन आंसर, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला चीज, सबसे पहले अगर आप पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो या यू आर अप्लीकेबल, तब तो आप वहां कर ले। इफ यू आर नॉट अप्लीकेबल, जो अभी तक आपका 20 CR का टर्नओवर नहीं था, बट योर टर्नओवर इज 5 to 20 के बीच में आता है, तो सबसे पहले आप जीएसटी के पोर्टल पर जाइए और वहां पर अपने आप को ई इनवॉइसिंग में रजिस्टर कर दो। वो एक यूजर आईडी मांगेगा, फिर फोन नंबर, ईमेल आईडी, उस पर ओटीपी आएगा और दे विल आस्क सम डिटेल कि आप B2B क्या इनवॉइसिंग, थोड़ा बहुत डिटेल आएगा, वो फिट करिएगा, आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब जो सबसे पहला कंसर्न है हमारा कि जैसा मैंने आपको बता दिया कि 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होगा तो यू हैव टू क्रिएट ई इनवॉइसिंग। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम इससे आगे चलते हैं। अब जो सबसे पहला हमारे और आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि देयर इज द वन ऑर्गेनाइजेशन, रिटेल शॉप और एनी शॉप जहां पर B2B इनवॉइस भी कट रहा है, B2C इनवॉइस भी कट रहा है, तो क्या हमें ई इनवॉइस हर किसी के लिए काटना है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि B2B में तो इनवॉइस काटना ही काटना है, लेकिन जैसे ही आप B2C इनवॉइस आप शुरू करते हो काटना, तो वहां पर वो GST नंबर मांगता है। पहले ये कंपलसरी नहीं था, अभी कुछ दिनों से इन्होंने कंपलसरी कर दिया। तो इट मीन्स कि अगर मैं आपके शॉप पर आता हूँ और मैं कहता हूँ कि आई नीड कोट पैंट का एक सूट पीस चाहिए या कोट खरीदना है, मतलब कि कोट लेना है, शर्ट पैंट लेना है, और इसका जो भी इनवॉइसिंग है 10,000, 20,000, और मैं आपको ये नहीं देता हूँ, जीएसटी नंबर नहीं देता हूँ, ठीक है, देन इट इज द B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तो इस केस में आप ई इनवॉइस जनरेट ही नहीं कर पाओगे। रीजन, जैसे ही आप ई इनवॉइस के पोर्टल पर आप जाके कनेक्ट करोगे अपने साइट को, अपने ERP को, तो वो सबसे पहले पूछेगा डू यू हैव द GST नंबर, योर कस्टमर हैज द GST नंबर। ऑप्शन आएगा, मतलब आपके पास है नहीं, आपके कस्टमर के पास, तो वो ई इनवॉइस जनरेट ही नहीं होगा। तो B2B में तो होना है, B2C में नहीं होना है। ये चीज आप क्लियर हो जाइए, ठीक है सर। अब क्वेश्चन उठता है, क्या हम सेम टाइम पर ई इनवॉइस जनरेट करें या आगे भी कर सकते हैं? तो इट इज एडवाइजेबल कि जब आप अपने ERP, जैसे आपके पास सारे के पास जेट ऑर्डर कंपनी का जेट प्रॉफिट या जेट प्रॉफिट नाम का जो सॉफ्टवेयर है, अगर आप इससे काम कर रहे हो तो एट द सेम टाइम ही आप इनवॉइस जनरेट करिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आएगा। क्या क्या प्रॉब्लम आएगा अभी मैं बात करता हूँ। अदरवाइज गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप सेम टाइम पर इनवॉइस जनरेट कर सकते हो या लेटर टाइम पर कर सकते हो। लेटर टाइम का मतलब, लेट्स से जब सुबह से शाम तक मैं B2C ही इनवॉइस करता हूँ और या तो B2B ही मैंने किया, लेकिन मेरे को ई-वे बिल जनरेट नहीं करना है,
तो ईबे बिल जनरेट नहीं करते तो दिन भर में मैंने 10, 20, 50 इनवॉइसेस जनरेट कर दिया और शाम में या एक दिन के बाद में ई इनवॉइस के पोर्टल पर जाके रजिस्टर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट हमें 7 डेज का टाइम देता है। विद इन द 7 डेज आप ई इनवॉइसिंग कर सकते हो। इशू यहाँ पर क्या आता है, सपोज दैट आपका B2B वाला एक बंदा आता है 5 लाख का माल लेने के लिए और एक बंदा आता है 50,000 का माल लेने के लिए। जो बंदा आपके पास 5 लाख का लेने आ रहा तो उसको इनवॉइस के साथ साथ ईबे बिल भी चाहिए, लेकिन जो 50,000 वाला है उसको ईबे बिल नहीं चाहिए। तो ईबे बिल जनरेट करने के लिए आपको इनवॉइस करना पड़ेगा। तो अगर आपने एक बार इनवॉइस कर दिया तो आगे आने वाले बिल को भी आपको हाथ के हाथ ही करना पड़ेगा। तो दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। सो मैंने बोला कि इट इज एडवाइजेबल कि जब आप इनवॉइस रेज कर रहे हो, आपका सिस्टम इनवॉइस रेज कर रहा है, उसी समय आपको इनवॉइस बना लेना है। इनवॉइस बनाने में क्या है, जब आप पूरा इनवॉइस क्रिएट करते हो, जैसे अभी तक आप क्रिएट कर रहे थे, प्रिंट करने से पहले आप जीएसटी पोर्टल को कनेक्ट हो जाता है। जब आप रजिस्टर्ड करते हो तो वहां पर एक कनेक्शन का एक ऑप्शन आता है। जब आप कनेक्ट कर देते हो, आपके सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो जाता है, तो वहां पर होता है डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस। आपको सिर्फ क्लिक बटन एस करना है, वो अपने आप जीएसटी के पोर्टल पर जाता है। वहां पर इंटीग्रेशन हो रखा होता है इंटरफेस का, और वहां का जो कोड होता है वो उठा के आपके इनवॉइस पर लगा देता है। तो सेम टाइम करने से ये फायदा होता है कि आपको दोबारा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप कहते हैं कि मनीष मेरा तो दिन भर B2C का ही है, तो इस सिनेरियो में आप ये काम कर सकते हो, या B2B में है लेकिन मेरे को ईबे बिल नहीं जनरेट करना है। कोई 40,000 का माल लेके गया, कोई 50,000 का, विद इन द सेम स्टेट 1 लाख तक का, 1 लाख तक के इनवॉइस में आपको ईबे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस सिनेरियो में सुबह से शाम तक का आप इनवॉइस काट लो और बाद में ई इनवॉइसिंग कर सकते हो, और अगर ईबे बिल की जरूरत है तो भी कर सकते हो। तो इट इज द एडवाइजेबल कि सेम टाइम पर करो, या फिर आपके पास 7 दिनों का समय रहता है, विद इन द 7 डेज आप कर सकते हो। अब आता है कि इनवॉइस हम कैंसिल कब कर सकते हैं। सपोज दैट आपने इनवॉइस बना दिया, मैं आपके पास आता हूं और मैं बोलता हूं B2B का एक इनवॉइस बना दो, और एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद हमने आपको किया कि नहीं जी ये इनवॉइस गलत हो गया, तो अब क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ने टाइम दिया हुआ है सिर्फ 24 आवर्स का, कि आप ये इनवॉइस को 24 आवर्स में ही कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर कस्टमर ने 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद बताया, या हमने B2B का एक इनवॉइस तो काट दिया और उसने बोला कि भाई साहब आप बिल बना के रखो, मैं 2 घंटे में आता हूँ, और वो कहीं शॉपिंग करने गया या कुछ भी करने गया, ठीक है, लेकिन वो उस टाइम आता नहीं है, और आपने कॉल किया तो बोला भाई साहब कल सुबह सुबह आ जाऊंगा, आज तो मैं माल उठा नहीं पाया। अब 40-50 हजार का बिल था, तो आपने ईबे बिल की भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपने ई इनवॉइसिंग कर दिया, कल भी नहीं आया। परसों फिर फोन करता है कि सर आपका जो माल था वो महंगा है, मैं आपसे माल ही नहीं लूंगा। पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में कहता है ई इनवॉइस तो कैंसिल नहीं हो सकता है। तब अब मैं क्या करूं, क्या मेरे को इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। इस केस में कहता है आपका जो सॉफ्टवेयर है जेट प्रॉफिट का जो सॉफ्टवेयर है, वहां पर आप उस इनवॉइस को कैंसिल कर दो। ईबे बिल ई इनवॉइस कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने सिस्टम में इनवॉइस को कैंसिल कर दो। जो आपका जीएसटीआर होगा, जब जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, वहां पर कैंसिलेशन का डिटेल डालना पड़ेगा। और हो सकता है सम टाइम अगर ये फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाता है कि हर 25 बिल में से 20 बिल आप कैंसिल ही करते जा रहे हो, तो इस केस में जीएसटी डिपार्टमेंट कभी भी आपसे क्वेश्चन रेज कर सकता है कि आपके यहाँ से 50 बिल बनता है और उसमें से 20 बिल कैंसिल होता है, वो भी 2 दिन के बाद, विद इन द 24 आवर, तो आप ई इनवॉइस भी कैंसिल कर सकते हो। तो व्हाट इज द रीजन। तो वो आपको प्रिपेयर्ड होना है कि जब भी आप कोई इनवॉइस कैंसिल करते हैं तो उसके पीछे आपके पास लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर रीजन होना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हाँ, अब पूरे महीने में 200 बिल बना, उसमें 1-2 इनवॉइसेस कैंसिल होता तो क्वेश्चन नहीं उठेगा, लेकिन 200 इनवॉइस अगर 50 इनवॉइस, 60 इनवॉइस, 100 इनवॉइस कैंसिल हो रहे हैं, देन इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ई इनवॉइस कितने देर में कैंसिल हो सकता है, 24 आवर्स में। इससे ज्यादा टाइम में करना है तो ई इनवॉइस तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन आप अपने सिस्टम में आप कैंसिल कर सकते हो। हेलो
अगर आपने ईवे बिल बनाना है तो सबसे पहले आपको इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा, तभी ईवे बिल बनेगा। बिना इनवॉइस क्रिएट किए हुए ईवे बिल बन नहीं सकता। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ईवे बिल बनाने के लिए भी आपको इनवॉइस का जो रेफरेंस नंबर आता है दैट वी हैव टू शो। तो अगर हमें किसी को ईवे बिल से माल एक जगह से दूसरे जगह या वन स्टेट टू अनदर स्टेट ट्रांसफर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने सॉफ्टवेयर में इनवॉइस जनरेट करेंगे, उसको इनवॉइस पर कनेक्ट करके इनवॉइस क्रिएट होगा, फिर हम ईवे बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ईवे बिल में, सपोज दैट मैंने एक इनवॉइस बनाया 5 लाख का माल था और ईवे बिल भी बना दिया, और उसके बाद ईवे बिल में कुछ गलती हो गई, लाइक क्वांटिटी गलत लिखा गया, हो सकता है ट्रांसपोर्टर का नंबर गलत लिखा सकता है, या कुछ भी ऐसा गलती हुई। तो अगर ऐसा होता है तो क्या मैं कर सकता हूं? तो इसमें कहता है कि ईवे बिल अपने आप में कैंसिल नहीं हो सकता है, अपने आप में एडिट नहीं हो सकता, उसके लिए आपको इनवॉइस भी करना पड़ेगा। तो अगर आप ईवे बिल को कैंसिल करना चाहते हो तो आपको पहले इनवॉइस भी कैंसिल करना पड़ेगा, अगेन आपको दूसरा इनवॉइस क्रिएट करना पड़ेगा, तब फिर ईवे बिल बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जो अभी हमने दो चीज देखा, इनवॉइस हम 24 आवर्स में ही हम कैंसिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर ईवे बिल भी क्रिएट हो गया है तो ईवे बिल और इनवॉइस, अगर ईवे बिल को कैंसिल करना है तो इनवॉइस को भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो आज के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि एक बार आप जीएसटी पोर्टल पर इनरोल कर लेते हो कि माय टर्नओवर इज मोर देन 5 CR और मैं इनवॉइसिंग के लिए एप्लीकेबल हूँ, इस सिनेरियो में आपको कोई भी बिल काटोगे तो सोच समझ के काटना है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जीएसटी डिपार्टमेंट आपके वार्ड में जा चुका है। तो अगर आप वहां पर कुछ रीचेंज करते हो, कैंसिल करते हो, तो अभी तक क्या था कि मैं अपने सॉफ्टवेयर में जेट प्रॉफिट में मैंने बनाया, कैंसिल कर दिया, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन नाउ दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन अपलोडेड टू वार्ड या मेरे जीएसटी के कमिश्नर के पास या इंस्पेक्टर के पास है। दे कैन आस्क अगेन सेम सिनेरियो, 200 इनवॉइस में 1-2 इनवॉइस कैंसिल होता है, नोबडी गोइंग टू आस्क। लेकिन 200 इनवॉइस में अगर 50 इनवॉइस कैंसिल हो रहा है, देन एवरीबॉडी विल आस्क टू यू। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कल को क्वेश्चन पूछेगा और जीएसटी डिपार्टमेंट भी पूछेगा। सो आज के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई भी इनवॉइस क्रिएट करना है तो ईच एंड एवरीथिंग समझना है, क्वांटिटी सही जाए, सामने वाला पार्टी का नाम सही जाए, उसका जीएसटी नंबर सही जाए, ट्रांसपोर्टर का नाम ईवे बिल पर सही हो, ताकि कैंसिलेशन का ऑप्शन नहीं आए। अगर ये कैंसिलेशन का ऑप्शन आता है देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू यू, क्योंकि आपको 2-2, 3-3 जगह चेंज करना है। और अगर किसी कारण से 24 आवर्स के बाद आपको पता चलता तो ये इनवॉइस तो कैंसिल होगा ही नहीं, आपको सिस्टम में सिर्फ कैंसिल करना पड़ेगा। तो दिस इज द समथिंग प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पता है कि ईवे बिल हम 72 आवर्स तक कैंसिल कर सकते हैं, ईवे बिल हम 24 आवर्स तक कर सकते हैं, दोनों को रिलेशन नहीं है। और आई एम वेरी मच श्योर गवर्नमेंट या तो ईवे बिल का भी टाइम रिड्यूस कर देगा या इनवॉइस का टाइम इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक हम 72 घंटे तक कैंसिल कर सकते हैं, 24 घंटे तक कैंसिल कर सकते हैं, और दोनों एक दूसरे का पूरक है। तो ये इम्पॉसिबल है। ये कुछ दिन के बाद हो सकता है डिपार्टमेंट कुछ करे, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, व्हेनेवर यू हैव टू क्रिएट इनवॉइसेस, तो वो इनवॉइस आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है। और अगर प्रिंट करने से पहले या इनवॉइस पर जाने से पहले 1 या 2 बार चेक करवा लेना चाहिए। जैसे एक मिस्टर ए बना रहे बिल तो दूसरा मिस्टर बी चेक कर ले, सो दैट की गलती होने के चांसेस खत्म हो जाए, क्योंकि आपकी एक गलती आपको बहुत महंगा पड़ेगा, आज से 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ईवे इनवॉइस से रिगार्डिंग, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं रजिस्ट्रेशन और टेक्निकल चीज पर अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं कॉन्सेप्ट पर आऊंगा, जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है। यहाँ से रिगार्डिंग कोई सवाल है तो इट्स ओके, अदरवाइज मैं अभी ऑडिट ट्रेल पर बात कर लेता हूँ 5 से 10 मिनट में, कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। देन वट एवर यू हैव क्वेश्चन वी विल डिस्कस। या तो ऑडिट ट्रेल क्या है? ऑडिट ट्रेल क्या है कि एज बीइंग द ऑडिटर, जैसे हम आपके यहाँ आते हैं ऑडिट करने के लिए और आई फाउंड सम एंट्री
ये मिस्टर एक्स को पैसा नहीं जाना चाहिए था, मिस्टर वाई को पैसा जाना चाहिए, तो मैं खुद ही आपको सजेस्ट करता हूँ सर इसको डिलीट कर दो, या अकाउंटेंट से डिलीट करा देते हैं, या अकाउंटेंट ने वो स्टाफ वेलफेयर में पैसा आया था लेकिन ही हैज पुटेड दैट जनरल एंट्री और पोस्टिंग इन द बिजनेस प्रमोशन, इस तरीके से कुछ हो गया है तो हम वहां से डिलीट करा के राइट हेड में करवा देते थे। तो कल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट अवेयर कि ड्यूरिंग द ईयर में कितना एंट्री डिलीट हुआ, उसको जब लास्ट में जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आईटीआर देते हैं या साइन बैलेंस शीट देते हैं, दे आर ओनली अवेयर। हो सकता है कि मैंने टैली 10 बार चेंज कर दिया हो सकता है मैंने 200 एंट्री है टूरे सिस्टम में लेकिन मैंने 5 बार एंट्री चेंज करवाया हो, 50 बार एंट्री का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाज नॉट अवेयर कि सही में कितनी एंट्रियां हुई है, कितनी एंट्रियां नहीं हुई है। जैसे मैंने एक इनवॉइस आपको रेज किया और आपने कुछ दिनों के बाद बोलते हो नहीं मनीष मुझे तो आपका इनवॉइस नहीं चाहिए, और ड्यू टू सम रीजन आप जीएसटी में आते हो लेकिन मैं जीएसटी में नहीं आता, आई एम द कंसल्टेंट और मेरी टर्नओवर 20 लाख से कम है और मैं आपको एक इनवॉइस दे दिया, मैंने उसको रीचेंज कर दिया, ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कभी जाता ही नहीं था। दैट इज द रीजन कि उन्होंने ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट डाल दिया कि जो भी एक बार एंट्री होगी आपके सिस्टम में तो वो डिलीट नहीं हो सकते, डिलीट करोगे फिर भी उसका कुछ ना कुछ डिटेल उस डिपार्टमेंट के पास रहेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन आस्क क्वेश्चन टू यू कि जितने भी नंबर ऑफ एंट्री डिलीट हुए हैं उसका मेरे को प्रिंट आउट चाहिए। पहले पता ही नहीं चलता था, नाउ दे हैव आस्क्ड, दे कैन आस्क आफ्टर 1 and 2 years ड्यूरिंग द स्क्रूटनी कि आपकी नंबर ऑफ टोटल एंट्री इज द 1000 और नंबर ऑफ एंट्री डिलीटेड 50, मेरे को 50 का ट्रांजेक्शन दिखाओ, मेरे को वाउचर दिखाओ। अगर उसको वहां पर कुछ गलती निकलती है, सपोज दैट सब मिस्टीरियस ट्रांजैक्शन निकल के आता है या कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन निकल के आता है, या ऐसे आदमी जैसे आपने पहले मिस्टर राम को दिया हुआ था, अब हमने पैसा राम को दिया लेकिन हमने मूव कर दिया मिस्टर मोहन को, तो दे कैन आस्क क्वेश्चन और वहां से दे विल फाइंड एविडेंस और वो राम के जगह पर मोहन को क्रेडिट करेगा और उसके अगेंस्ट में जो भी फिर उनको स्क्रूटनी में आगे प्रोसीड करना होगा वो करेगा। तो दैट इज द ऑडिट ट्रेल जो मैंने आपको ओवरऑल चीजें बताई। अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं अकाउंटेंट के, सर मैं एंट्री डिलीट कर सकता हूँ कि नहीं, एडिट कर सकता हूँ कि नहीं, और इसका डिटेल मेरे को ऑडिटर को देना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना है। तो आई हैव रेज सम क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन पर मैं आपको एक एक करके जवाब दे देता हूँ। पहला, एंट्री कैन बी डिलीटेड और नॉट? डेफिनेटली दैट इज द सॉफ्टवेयर यू कैन डिलीट एंट्री, बट इट इज द ऑडिट ट्रेल आने के बाद वंस योर सॉफ्टवेयर एक्सेप्टेड ऑडिट ट्रेल, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एंट्री को डिलीट नहीं करना चाहिए। रीजन, वंस यू हैव एंट्री डिलीटेड तभी उसका एक कार्बन कॉपी सिस्टम में बन जाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन आस्क दैट वाउचर, सो इट इज एडवाइजेबल कि आप इसको डिलीट मत करो। हाँ, अगर ऐसा एक नॉर्मल सा गलती है, लेट्स अज्यूम कि आपने ऑफिस में खाना मंगवाया अपने क्लाइंट को खिलाने के लिए और वो अकाउंटेंट ने गलती से स्टाफ वेलफेयर में डाल दिया, अमाउंट इज सेम बट जाना चाहिए था बिजनेस प्रमोशन हेड में, चला गया स्टाफ वेलफेयर में, देन आप स्टाफ वेलफेयर वाला एंट्री को डिलीट करके बिजनेस प्रमोशन का एक ये कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि आपने सेल किया है मिस्टर एबीसी को और आप फिर उसको डिलीट करके मिस्टर XYZ को कर दिया, या कहता है कि मेरे सिस्टर कंसर्न को कर दो, तो अगर ऐसी कोई बड़ी एंट्री आप डिलीट करते हो देन इट कैन बी क्वेश्चन टू यू फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लेकिन नॉर्मल चीजें अगर हो रखी है, लेट्स से जो एक इनवॉइस आपने खाना मंगवाया 501 रुपए का, गलती से पंच हो गया 551 रुपए का, या तो आप उसको एडिट कर दो या डिलीट कर दो, दोनों कर दो, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यू हैव द प्रूफ। लेकिन जहां पर गवर्नमेंट को टैक्स इवेजन का क्वेश्चन आता है, जीएसटी इवेजन का क्वेश्चन आता है, कंपनी एक्ट का वायलेशन का क्वेश्चन आता है, जैसे कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती है, ठीक है, तो मान लो कि हमने पहले दिखा दिया कि मिस्टर एक्स ने एबीसी कंपनी हैज गिवन द लोन टू मिस्टर एक्स। अब जब उसके कंसल्टेंट ने बताया कि यार मिस्टर एक्स इज द डायरेक्टर ऑफ एबीसी कंपनी, अब तो इसको लोन दे नहीं सकते, तो इसको क्या करो, मिसेज एक्स कर दो जी, या किसी रिलेटिव को कर दो, या थर्ड पार्टी का नाम कर दो। तो ऐसे केस में इफ यू हैव डिलीटेड और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर लेता, देन दे कैन लेवी पेनल्टी ऑन यू कि आप डेटा को छेड़छाड़ कर रहे हो। तो इट इज एडवाइजेबल कि आपको एंट्री डिलीट नहीं करना है। इफ इट इज द पॉसिबल तो मॉडिफिकेशन या रिवर्सल एंट्री आप पास कर दो। लेकिन जो छोटी मोटी जहां पर देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द गवर्नमेंट रेवेन्यू
आप उसको कर लो, कोई लॉ पर इम्पैक्ट नहीं है, आप उसको चेंज कर दो। एंट्री कैन बी मॉडिफाइड और नॉट, जैसे मैंने आपको बताया पहला एंट्री हमने किया था स्टाफ वेलफेयर डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, अब हम उसको बिजनेस प्रमोशन डेबिट टू कैश अकाउंट कर देते, तो इस तरीके का एंट्री को मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगेन यहाँ पर एडवाइजेबल होगा कि आप उसके अगेंस्ट में एक दूसरा जनरल एंट्री पास कर दो, जैसे पहले आपका था स्टाफ वेलफेयर टू कैश अकाउंट, अगर आप इसको स्टाफ वेलफेयर में नहीं रखना चाहते, आप बिजनेस प्रमोशन में रखना चाहते हो, तो आप कर दो बिजनेस प्रमोशन डेबिट टू स्टाफ वेलफेयर 501 रुपया या 551 जितने रुपए से है। उससे क्या होगा कि पहली जो फर्स्ट एंट्री थी वो एज इट इज रहेगा और उसका एक तरीके से मॉडिफिकेशन हो जाएगा, या वो अमाउंट जहां उसको ट्रांसफर होना वो भी हो जाएगा। आपके लिए भी ट्रैकिंग रहेगा कि पहले ये स्टाफ वेलफेयर में आ गया था, अब हमने इसको बिजनेस प्रमोशन में कर दिया। तो और अगर आप मॉडिफाई कर देते हो तो मे बी उस टाइम तो याद रहता है, लेकिन साल 2 साल 3 साल के बाद याद नहीं रहता है। सो मॉडिफाई छोटा मोटा कोई है तो अगेन यू कैन डू मॉडिफिकेशन, अदरवाइज आज के बाद आपको कसम ये खा लेना है आफ्टर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ऑडिट ट्रेल कि आपको एंट्री मॉडिफाई नहीं करना, उसमें जनरल एंट्री पास करना है, सो दैट आप भी आइडेंटिफाई कर सको कि आपके अकाउंटेंट ने क्या गलती किया, या अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपको ये रहे कि नहीं यार कोई भी एंट्री पास करने से पहले मुझे 5 बार सोचना है, आई हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली एंट्री क्या है। ये नहीं कि जो मन में आया सस्पेंस में डाल दिया, बाद में देख लेंगे, ऑनर आएंगे तो पूछ लेंगे। वो क्वेश्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन रेज आस्क, और वहां पर हैवी पेनल्टी लग सकता है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। डिपार्टमेंट कैन आस्क फॉर मॉडिफिकेशन, डेफिनेटली अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया है ही कैन आस्क फॉर द लिस्ट कि कौन कौन सी ऐसी एंट्री है जो आपने मॉडिफाई किया है, नहीं तो ही कैन आस्क योर होल बैकअप, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, जेट प्रॉफिट का XYZ जो भी सॉफ्टवेयर है, तो वो आपका पूरा का पूरा बैकअप ले सकता है, वो पूरा ट्रेल कर सकता है कि कितनी एंट्री आपने डिलीट किया, कितनी एंट्री आपने मॉडिफाई किया, और उस पर ही कैन आस्क एनी काइंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन कि पहले आपने मिस्टर एक्स को दिखाया हुआ था, मिस्टर वाई को क्यों दिखा रहे हो। अगर ये बिजनेस प्रमोशन स्टाफ वेलफेयर वाला है तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जहां पर इम्पैक्ट पड़ने वाला हो, जहां पर टैक्स इवेजन हो रहा हो, जहां पर गवर्नमेंट को लूज हो रहा हो, वहां पर वो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हो देन ही कैन इम्पोज एनी काइंड ऑफ पेनल्टी, पेनल्टी कैन बी 5-10। अभी ऐसा कोई ये नहीं है क्योंकि अभी ये तो स्टार्ट ही हुआ है, तो गवर्नमेंट इस पर कितनी पेनल्टी लगाएगा नहीं लगाएगा, हो सकता है वो डिसअलाउ कर दे, एनीथिंग इज द पॉसिबिलिटी। वो धीरे धीरे जैसे जैसे 1 साल 2 साल बीतेगा तो ये सारी चीजें आएगी, लेकिन ये चीज हो सकता है। नाउ हाउ टू कीप ट्रैकिंग, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको ट्रैक कैसे करना है। तो अगर कोई गलती हो गई, लाइक बिजनेस प्रमोशन में जाना था स्टाफ वेलफेयर में चला गया, और आपका ऑडिटर आके आइडेंटिफाई करता है या अकाउंटेंट ने कर दिया, उसका जो अकाउंट्स मैनेजर है ही हैज आइडेंटिफाई कि दिस अमाउंट शुड गो इनटू बिजनेस प्रमोशन इंस्टेड ऑफ द स्टाफ वेलफेयर, ओके, तो आप उसको एक अलग से एक्सेल या कुछ डिटेल बना के रखो, सो दैट कि कल को 2 साल बाद 3 साल बाद कभी भी डिपार्टमेंट कोई क्वेश्चन पूछे देन आप उसका जवाब दे सकते हो। तो ये आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रैकिंग का आपको एक लॉगबुक बनाना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटेंट अकाउंट्स मैनेजर हो सकता है सदा सब दिन आपके साथ ही काम करे 2 साल 5 साल, लेकिन अगर वो किसी कारण से नहीं काम कर रहा, साल 2 साल के बाद जॉब छोड़ देता है, नोटिस तो एज बिग द ऑनर आपके पास आना है, एज बिग द बिजनेस आपके पास आना है। तो ये आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैकिंग लॉगबुक का भी एक हिसाब करवाना शुरू करो, सो दैट कि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब स्क्रूटनी आएगा 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद, तो वो पूरा का पूरा जो आपका बैकअप है और वो पूछ सकता है कि कितनी एंट्री डिलीट हुई, कितना एंट्री मॉडिफिकेशन हुआ और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, वो दे कैन आस्क ईच एंड एवरीथिंग। तो सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर पुटिंग एनी एंट्री इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बिफोर मेकिंग एनी इनवॉइस, क्योंकि एक बार इनवॉइस बन जाता है तो चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो नाउ अब इसको मैं बहुत ज्यादा लेके नहीं जाऊंगा। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच मनीष सर। आपने हमें इनवॉइसिंग के बारे में बताया और हमें ऑडिट ट्रेल के बारे में बताया। लाइक विद रिलेटेड टू ऑडिट ट्रेल
लाइक हमें अपने बिजनेस में अगर हम अकाउंट्स में कोई भी चीजें मेंटेन कर रहे हैं, लाइक हमें कोई ट्रांजेक्शंस हमें बुक्स में लेकर आनी है, सबसे पहले हमें कुछ उसके बारे में सोच के ही हमें एंट्री पास करनी है, राइट सर? कि अगर हम उसको एंट्री पास भी कर देते हैं तो लेकिन हमें अगर उसको एडिट करना है तो वी कैन एडिट। अभी तक हमारे यहाँ पे हम लोग फियर सोचते हैं कि नहीं हमें एडिट नहीं करना है या कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, ऐसा नहीं है। वी कैन एडिट दोज ट्रांजेक्शंस, ताकि हमें आगे जाके बस हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए कि अगर हम उसको किसी भी तरह से एडिट कर रहे हैं तो एक हमने क्यों एडिट किया है, यानी कि हमें क्या एडिट किया है, क्यों एडिट हुआ है एंड हमने किसने एडिट किया है, ये हमारा होना चाहिए। और अगर ये हमारे सॉफ्टवेयर में नहीं है तो हमें ये जहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, टैली कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जेड ऑर्डर का कर रहे हैं, वहां पे हमें इस सॉफ्टवेयर में उनसे डिमांड करनी होगी कि हमें ये चीज एडिट लॉग की हमें ऑप्शन हमें प्रोवाइड करे। सेकेंडली, जैसे कि मनीष सर ने हमें बताया कि ई इनवॉइसिंग के लिए, कि ई इनवॉइस हमारे लिए जैसे एक बिजनेसेस जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, वहां पे हमें ई इनवॉइसिंग का मेंटेन करना जरूरी है, लाइक हमें ई इनवॉइस को जनरेट करना जरूरी है। तो मनीष सर मेरे लिए मेरी तरफ से एक क्वेश्चन है। मैडम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी सर। अगर जैसा मैं इनवॉइसिंग में आ जाता हूँ तो मुझे ऑडिट ट्रेल कंपलसरी मेंटेन करना पड़ेगा ना? सर ऑडिट ट्रेल सेपरेट पार्ट, लाइक ऑडिट ट्रेल सर जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट है, कि अगर हमें लाइक कंपनीज में आ रहे हैं, अगर हमारी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, उनके लिए सर हमारी ऑडिट ट्रेल को मेंटेन करना नेसेसरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं है, अच्छा ओके। नहीं, क्योंकि जैसे हमारे शोरूम है, इसका कपड़े की शोरूम है, तो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म ही है दो, तो उसमें जैसे ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना जरूरी नहीं है उसमें? नहीं सर, उस केस में सर ऑडिट ट्रेल करना जरूरी नहीं है। इस अभी सिर्फ गवर्नमेंट ने कंपनीज के लिए ऑडिट ट्रेल को कंपलसरी किया है कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन आप वो भी अकाउंटिंग में करते हैं। ये सर कोई इन्वेंट्री में एप्लीकेबल नहीं है, ये अकाउंटिंग में एप्लीकेबल है कि अगर हम अकाउंटिंग कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, हमें हु, व्हेन एंड व्हाट, यानी कि किसने किया, कब किया एंड क्या किया, इसका एक एडिट लॉग होना जरूरी है। वो मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे वो ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि कब किसने क्या किया है, सर मतलब ये कभी भी आपको, क्वेरी आती है। सर आपको यहाँ पे मेंटेन नहीं करना है, आपको सिर्फ अगर कोई हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑटोमेटिकली लॉग जो बनेगा सर वो ऑटोमेटिकली बैकएंड से लॉग बनेगा। उसके लिए आपको मेंटेन, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और अगर हम उसको चेंज करने की सोच रहे हैं तो अगर हम गवर्नमेंट हमसे आगे इन फ्यूचर हमसे डिमांड कर सकती है कि आपने क्यों किया है। हाँ समझ गया ना, उसी इसीलिए हम लोग को मेंटेन करना है कि आगे हम उनको जवाब दे सके कोई क्वेरी है उनकी तरफ से। तो ये सर राइट, एब्सोल्युटली सर। तो ये सर ऑडिट लॉग का सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। अच्छा, दूसरे मैम एक पूछना था, जैसा टर्नओवर 5 करोड़ का बोल रहे हैं, जैसा किसी फर्म का टर्नओवर इस एक पीरियड में 5 करोड़ के ऊपर था 3 साल पहले, 4 साल पहले, और अभी अगर 5 करोड़ के अंदर है तो भी मुझे इनवॉइसिंग कंपलसरी हो जाएगा ना? जी सर, अभी सर मैं ये मनीष सर एक क्वेश्चन है कि अगर हमारा किसी भी साल में 3-5 करोड़ की टर्नओवर हमारी पिछले एक साल में हो चुकी है तो क्या हमें ई इनवॉइसिंग जरूरी है वहां पे? नहीं 5 करोड़ से ज्यादा होगा। सपोज दैट कि लास्ट ईयर आपका 3 करोड़ या 4 करोड़ था, लेकिन इस साल लेट्स अज्यूम कि अभी आपका जुलाई से अप्रैल से लेके अभी तक आपका 3-3.25 करोड़ हो गया और ये 5 करोड़ आपका दिसंबर में स्टार्ट होगा। तो जिस दिन आपका 5 करोड़ स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा सर, एक्सीड करने लगेगा, उस दिन फिर आप करोगे, क्योंकि आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको नहीं पता था। नहीं, 4 साल पहले अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर गया, 4 साल बाद में अभी जैसा कोविड पीरियड गया उसमें थोड़ा कम हो गया। अभी आप ये समझ लो, अभी आपको करंट ईयर का देखना है कि वेदर आप करंट ईयर में आपका 5 करोड़ का टर्नओवर है कि नहीं, आपको ये देखना है। मैं ये नोटिफिकेशन में जो देखा था ना, तो उसमें था कि आप लास्ट 5 इयर्स में कभी भी आपने 5 करोड़ क्रॉस किया है तो यू आर एप्लीकेबल फॉर ई इनवॉइसिंग, तो वो क्या है सर? वो मैं एक बार लेट मी चेक, अदरवाइज एक बार मैं थोड़ा सा, मेरे को थोड़ा सा एक टाइम दे दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ सर और उसके बाद फिर बताता हूँ। सर इस पे मेरा भी एक क्वेश्चन है कि हमें थोड़ी पता होगा कि हमारी टर्नओवर 5 करोड़ जाएगी या नहीं जाएगी, हमें थोड़ी पता होता है, ये तो डिपेंड करता है हमारी सेल के ऊपर। डेफिनेटली, जस्ट वन सेकेंड।
सर लाइक अभी सर की क्वेश्चन कर रहे थे कि लास्ट 5 इयर्स में अगर हमारी टर्नओवर 5 करोड़ से है, तो सर उससे रिलेटेड लाइक अगर आपका पैन यानी कि मल्टीपल आपकी ब्रांचेस हैं, अगर आपकी एक ही ब्रांच है और आपकी 5 करोड़ की टर्नओवर आपकी पैन, अगर तो गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आपका एक पैन नंबर पे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ की क्रॉस हो गई है, देन आपको B2B ट्रांसैक्शंस के लिए ई इनवॉइसिंग का होना वहां पे जरूरी है। अगर B2C के लिए B2C के लिए तो ये तो इनवॉइसिंग बनेगा ही नहीं ना सर। आप रजिस्टर्ड भी कर लेते हो, तो जब तक उसका सामने वाले का GST नंबर नहीं होगा तो आप तो इनवॉइस क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। नहीं, तो ये मतलब फिर जैसा ई इनवॉइसिंग रिटेल के लिए जरूरी नहीं है क्या? मतलब सर रिटेल के लिए जरूरी है। सपोज दैट कि आपका एक गारमेंट का शॉप है, लेट्स अज्यूम, ठीक है सर, हाँ और जी, आप हाँ जी, 95% या 99% बिलिंग आप करते हो B2C। जैसे मैं हाँ जी, आया, साड़ी खरीद लिया, शर्ट पैंट खरीद लिया, करेक्ट, वॉटेवर। लेकिन मैं एक छोटा दुकानदार हूँ जो मैं गांव में रहता हूँ, वहां पर मेरे पास GST है, मैंने आपके पास आ गया लेने के लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख का माल दे दो, तो उस केस में करेक्ट, यू हैव टू जनरेट ई इनवॉइस। तो B2B अच्छा, होगा और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड कर रहा है तो आपको लेना ही लेना है, करना ही करना है। मतलब B2C के लिए जरूरी नहीं है इनवॉइसिंग। हाँ, B2C के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि जब GST या रिटर्न भी आप फाइल करते हो सर, हाँ आप जी, करते हाँ हो जी, या आपका कंसल्टेंट या अकाउंटेंट होगा, तो करेक्ट, B2C में ना स्टेट वाइज स्टेट का आता है कि दिल्ली टू दिल्ली में आपने कितना बेचा, दिल्ली टू यूपी में कितना बेचा, जो भी है वो एक करेक्ट, B2C हाँ में जी, अलग से आता है। तो वहां पर राइट, बिल बाय बिल नहीं जाता, बट B2B में बिल बाय बिल डिटेल जाता है। ओके, हाँ जी, ठीक है सर। चलेगा बहुत, हाँ हाँ, चलो, थैंक यू। मनीष सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है रांची का कि लाइक उनके पास टैली एंड जेड ऑर्डर दोनों सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, एंड इन्वेंट्री में लाइक हम इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं जेड ऑर्डर में, एंड टैली मेंटेन कर रहे हैं, टैली में अकाउंटिंग सारा मेंटेन कर रहे हैं, तो वहां पे सर अगर ऑडिट ट्रेल का लगाना जरूरी हो जाएगा, तो अगर हमें एक कस्टमर ने बिल नहीं, तो अगर यहाँ ऑडिट पे ट्रेल आपको टैली में लगाना, क्योंकि आप जेट प्रॉफिट से सिर्फ स्टॉक मेंटेन कर रहे हो। तो ऑडिट ट्रेल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए लग रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला, तो जिससे आप बैलेंस शीट बनाओगे, आप टैली से बैलेंस शीट बना, तो ऑडिट ट्रेल वहां पर लगाना जरूरी है आपको। सर अगर किसी एक पर्सन ने, एक कस्टमर ने एक हमसे बिल पर हमने कोई सामान है एंड देन उन्होंने एक कोई बिल मॉडिफाई हो गया है, तो अगर मॉडिफाई हो गया है तो उस टाइम पे सर कैसे होगा? जैसे अगर एक पीस किसी ने रिटर्न कर दिया है, तो उस केस में सर किस तरीके से ऑडिट ट्रेल को हमें करना चाहिए कि वो नहीं ऑडिट नहीं, प्रॉब्लम ना हो? एग्री, आई गॉट योर पॉइंट। जैसे कि मान लो कि एक मैंने आपको कंसल्टेंसी का एक इनवॉइस रेज कर दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, 10 दिनों के बाद आपके मैनेजमेंट से डिसाइड होता कि ये बिल मनीष 1 लाख का नहीं करना है, हम 75,000 का करेंगे, या पूरा का पूरा कैंसिल करें एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि इसमें आफ्टर ऑडिट ट्रेल आने के बाद वो 25,000 का डेबिट या क्रेडिट नोट से ही एंट्री पास करना ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि हम पूरा का पूरा 1 लाख का एंट्री डिलीट करके अगेन हम 75,000 का करें। तो इसमें सिर्फ अब आपको यही ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल हो तो वो जनरल एंट्री से ही एंट्री पास करना है, उसको मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन पर नहीं जाना है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो एंट्रीज है वो एक तरीके से डेबिट और क्रेडिट में रखनी है, मतलब एंट्री पास करनी है, ना कि उसको कैंसिल करनी है, राइट? हाँ, बस यही। अगर क्योंकि नॉर्मल है, अगर हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमें उसका भी जीएसटी वालों को जवाब देना पड़ेगा कि हमने मॉडिफिकेशन क्यों की, एडिट क्यों की, कैंसिल हाँ क्यों की। फिर ऑडिट डेफिनेटली। ट्रेल का मतलब ये है कि हमें रिमार्क्स रखने पड़ेंगे, राइट? शॉप कीपर की स्पेलिंग क्या हाँ, होगी? रिमार्क, जैसे कि अगर लेट्स अज्यूम कि आपने मेरे को पहले पैसा दे दिया, सपोज दैट SHOP की मान लो कि मैं आपको अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ER, सपोज दैट आपने मेरे को 1 लाख रुपया पेमेंट कर दिया और ये डिसीजन हुआ कि हम लोन दे रहे हैं मनीष को, ठीक है, और फिर कुछ दिनों के बाद मैं कहता इसको लोन नहीं करके जी इसको आप एडवांस सर्विस के अगेंस्ट में दिखा दो, तो वो पहले आपने लोन में किया था क्योंकि मनीष कुमार को अपने करंट एसेट में डाला हुआ था, फिर आप उसको डेटर्स में लेके आते हो तो वो क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो इसलिए अगर छोटी मोटी कोई 100 200 500 का है, 1000 रुपये का है, डजेंट मैटर, आप उसको ऑल्टर भी कर दो, डिलीट भी कर दो, ज्यादा क्वेश्चनेबल नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है क्या वहां से इनकम टैक्स, जीएसटी डिपार्टमेंट या किसी एसोसिएटरी को प्रॉब्लम है कि नहीं। अब जैसे कि मनीष कुमार को पहले आप लोन दिखा रहे हो और उसको फिर आप एज ए सर्विस के अगेंस्ट में सेटअप कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं कंसर्न आ रहा है, क्योंकि
पहले अगर मनीष कुमार को पहले दे देते तो सर्विस के केस में क्या होता है कि इफ आई हैव रिसीव्ड सम मनी फ्रॉम योर साइड तो मुझे एडवांस पर भी जीएसटी देना पड़ता है। आप लोग रिटेलर हो, आप लोग को एडवांस पर जीएसटी नहीं देना पड़ता है, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर को एडवांस पर जीएसटी देना पड़ रहा है। तो हो सकता है मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ कि 6 महीना मैंने एज ए लोन दिखा दिया, 7वें महीना में मैं आपको इनवॉइस रेज कर देता हूँ। तो ये सब चीजें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी एंट्री को डिलीट या ऑल्टरेशन कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। एक अविनाश सर का सर एक क्वेश्चन था कि अगर हमें ऑडिट ट्रेल पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए नेसेसरी है या नहीं है, तो सर ये एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा मैंने बता दिया था कि पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए नेसेसरी नहीं है। सर पार्टनरशिप फॉर्म का बात नहीं है, आज की डेट पर क्या है, आपकी बैलेंस शीट अगर बन रही है, सीए साइन कर रहा है, तो पार्टनरशिप हो, प्रोप्राइटर हो या प्राइवेट लिमिटेड, डजंट मैटर, अगर सीए साइन वाला बैलेंस शीट चाहिए तो आपको ऑडिट ट्रेल करवाना ही करवाना है। एक क्वेश्चन जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर एक पीस हम लोगों ने कस्टमर ने आके चेंज कराया है तो क्या उसके लिए ऑडिट ट्रेल को किस तरीके से मेंटेन करना है। सर अगर यही बिल हमारा B2C ट्रांजैक्शन का रहता है, लाइक अगर कोई रिटेल कस्टमर हमारे पास आ रहा है एंड देन उस केस में हमारा कोई बिल मॉडिफाई हो रहा है, तो सर क्या उस केस में हमें किस तरीके से ऑडिट ट्रेल का मतलब ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। मॉडिफिकेशन इस केस में सपोज दैट कि आपके यहाँ से कोई साड़ी लेके गया और वो 10,000 का था, 2-3 आइटम लेके गया, 10,000 का, 2,000 का, 3,000 का, टोटल हो गया 15,000, और वो आके बोलता है कि एक जो 3,000 का आइटम है वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसका अगेन जैसे हम डेबिट और क्रेडिट नोट पर करते हैं, तो वो 15,000 सेल आपको 15,000 का ही दिखाओ, 3,000 का सेल रिटर्न दिखा दो, तो वो ज्यादा अच्छा है आपके इनवॉइस के ही प्रोस्पेक्टिव से और आपका ऑडिट ट्रेल के प्रोस्पेक्टिव से, दोनों तरीके से। दैट मीन्स कि हमें कोई अगर कस्टमर हमें रिटर्न करके जाता है या कुछ चेंजिंग होती है तो वहां पे हमें डेबिट नोट का या क्रेडिट नोट का यूज करना चाहिए परचेज। हाँ जी, बिल को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रखी थी। जो भी लेट्स अज्यूम कि आपने 1 जुलाई को किसी को बेचा था 15,000 का माल, और वो आज 10 दिन 15 दिन के बाद आके कहता है कि सर उस टाइम तो मैं घर चला गया था, नाउ आई हैव कम बैक, और अब मेरे घर में ये डिसीजन हुआ कि इतना का हम माल नहीं खरीदेंगे या 2,000 वाला चीज हमें सॉल्व नहीं पसंद आ रहा है, तो आप फिर आपको तो नहीं पता था ना कि 1 जुलाई में आपने क्या किया। सो इट इज एडवाइजेबल कि उसके अगेंस्ट का 2-3 हजार का जो भी डेबिट या क्रेडिट नोट या जनरल एंट्री से पास करना है, सेल 15,000 का दिखाइए और परचेज रिटर्न आप 2,000 या 3,000 जिसका है उसका दिखाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू सर। एक सवाल सर था ई इनवॉइसिंग से रिलेटेड है कि अगर हम यहाँ पे विद इन अ सेम स्टेट में एक ब्रांच ट्रांसफर करते हैं तो सर क्या उस केस में ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। हाँ, आपको इनवॉइस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अच्छा सेम स्टेट में जा रहा है। हाँ जी, तो सेम स्टेट में जा रहा है तो फिर आपको उसमें फिर आप नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि सेम स्टेट में फिर आप वो तो जस्ट एक स्टॉक ट्रांसफर हो गया। हाँ, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो उस केस में आपको इनवॉइस करना ही करना पड़ेगा। सेम स्टेट में तो आप चालान ट्रांसफर या सिर्फ नॉर्मल इनवॉइस बना के आप कर सकते हो। इनवॉइस क्योंकि वहां पर तो टैक्स इनवॉइस क्रिएट ही नहीं होगा, वहां पर तो आपको सिर्फ चालान रिसीट बनाना पड़ेगा। ओके सर। सो सर अभी तक जो मेरे पास सवाल थे इन सवाल थे सर। एक सवाल और है कि अगर हमने ई इनवॉइस हमने क्रिएट किया है तो किस तरीके से सर हम उसको बल्क में डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ वी कैन डाउनलोड दैट सर ई इनवॉइसेस इन बल्क। ये चीज मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को हाँ ये टेक्निकल वाला चीज मेरे को अभी थोड़ा सा ध्यान नहीं है, क्योंकि मैंने आप क्वेश्चन नोट कर लो, मैं फिर आपको आंसर दे दूंगा, फिर जिनका भी सवाल है आप उनको एक बार बता देना। मेरे को अभी एग्जैक्टली जो प्रोसीजर है इसके बारे में मेरे को अभी ध्यान है नहीं। ठीक है सर, एब्सोल्युटली सर। ये क्वेश्चन का आंसर हम जरूर हम नेक्स्ट उसमें करेंगे सर, मेल में जरूर मेंशन करेंगे। हाँ, एक सवाल सर और आया है सर का कि अगर B2C में सामने वाला शॉपकीपर है एंड वो गुड्स का कंज्यूमर है, वो बिल में जीएसटी नंबर डलवाता है तो ई इनवॉइस बनाना है या नहीं बनाना है। एक मिनट सर, B2C इनवॉइस सामने वाला शॉप को में वो गुड्स कंज्यूमर है और वो जीएसटी, अगर वो जीएसटी नंबर देगा तब आपको इनवॉइस करना, अगर वो जीएसटी नहीं देगा तो आप तो क्रिएट कर ही नहीं सकते हो। सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है, अगर वो जीएसटी नंबर देता है चाहे
पर किसी भी चीज का हो, क्रेडिट मिले नहीं मिले दैट्स अनदर पार्ट, फिर आप इनवॉइस कर सकते हो। ओके सर। सर थैंक यू सो मच सर। सर किसी और की कोई क्वेरी है तो सर हम आगे बढ़ते हैं। सर किसी की क्वेरी है तो सर एक बार बता दीजिएगा, तो हम आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, ओके सर, हम आगे बढ़ते हैं। सर थैंक यू सो मच मनीष सर, आपने हमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें बताई है रिगार्डिंग दैट इनवॉइसिंग एंड ऑडिट ट्रेल के लिए। एंड आई होप कि सर ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन है सर ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन रहेगी, बिजनेसेस में हमें गाइड करेगी किस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो नेक्स्ट सर मैं आई विल लाइक टू ऑनर मिस्टर रोशन सर so that he will explain us regarding some tips how to optimize ZOrder ERP and how to integrate all these regulations with ZOrder ERP so that we can easily generate e-invoicing or we can maintain audit trail in our ZOrder ERP. So Roshan sir, please kindly हमें कुछ tips बताइए। गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेरी वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे पहली बार मिल करके, और ये हमारा पहला सेशन था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सपोर्ट आपकी तरफ से मिलेगा। तो सबको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम रोशन है। गुड आफ्टरनून रोशन जी। गुड आफ्टरनून सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। एंड मुझे थोड़ा सा ये कहना पड़ेगा कि मनीष जी, जो उनका इंट्रोडक्शन बहुत कम दिया गया है, वो बहुत ही एक पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। उनका जो क्रॉस बिजनेस बाउंड्री के नाम से चैनल है, उसके थ्रू वो हमें हमेशा टिप्स देते रहते हैं। उनका ऑनलाइन सेशन चलता रहता है। इवन जो स्टार्स और स्टार्स में भी कई जगह पे जाके वो टॉक दे चुके हैं, की सेशन एड्रेस कर चुके हैं बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो वो हमारे लिए उन्होंने ये अपना टाइम निकाल करके और हमारी चीजों को हैंडल किया और हमारे क्वेश्चंस को आंसर किया। तो सबसे पहले मैं मनीष जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपना टाइम हमें दिया, उनका नॉलेज हमें काफी काम में आएगा, और बहुत सारी इनसाइट्स, बहुत अच्छी चीजें और बहुत ऐसी चीजें जो हम पहले नहीं जानते थे, हमने आज इस सेशन में जाना है। और मुझे अंदाजा है और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे टिप्स और जो उन्होंने स्किल्स, जो भी उन्होंने सेट्स प्रोवाइड किए हैं, उनसे हम सबको बेनिफिट मिला ही होगा। तो सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने ये देखा है कि किस तरीके से ई इनवॉइस अप्लीकेबल हो गया है फॉर ऑलमोस्ट ऑल बिजनेसेस, क्योंकि 5 करोड़ का टर्नओवर इज नॉट अ बिग डील फॉर एनी काइंड ऑफ रिटेलर्स। जो रिटेलर है उनका 5 करोड़ का टर्नओवर हो ही जाना है। तो अब आप ये समझ लो कि सबके पास जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी क्लाइंट्स हैं, जो कि रिटेल बिजनेसेस में हैं, उन सबको ई इनवॉइस करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रहता है कि कैसे करें। सर ने तो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया कि ई इनवॉइस का किस तरीके से हमें रेज करना चाहिए और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हम उसको कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई करना है तो कैसे करना है। पर सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि क्या उसके लिए हमें एक परमानेंट अकाउंटेंट बैठाना पड़ेगा जो दिन भर हमारे लिए ई इनवॉइस बनाते रहे, हर एक इनवॉइस के अगेंस्ट ई इनवॉइस बनाते रहे? ठीक है, नहीं। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस कर रखे हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ सर्टेन डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगा और कुछ बताना चाहूंगा इसके बारे में कि अगर आप ZOrder ERP यूज कर रहे हैं तो हम बड़ी आसानी से ई इनवॉइस और ई वे बिल रेज कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया एक टूल डेवलप किया है जिसको हमने नाम रखा है GST कंसोल। तो GST कंसोल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो नितिका, इफ पॉसिबल आप मुझे एक होस्ट स्क्रीन बना दीजिए सो दैट आई कैन शेयर माय स्क्रीन। यस सर, श्योर। जैसा अभी मुझे मनीष सर ने बताया था कि रिटेल में B2C वालों के लिए ई इनवॉइसिंग कंपलसरी नहीं है, 5 करोड़ का टर्नओवर भी हो जाता है। और आप अभी बता रहे थे कि रिटेल वालों के लिए भी कंपलसरी है, मतलब फॉर रेजिंग ई इनवॉइस। जैसा B2C अगर B2B किसी को देते हैं तो सिर्फ अगर रिटेल का ही है जिसका B2C बिलिंग होता है, B2B नहीं होता है,
तो उसके लिए भी कंपलसरी है क्या इनवॉइसिंग? सर इसमें मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ बड़ा क्लियर, अगर आपका सिर्फ B2C बिजनेस है हाँ जी। और आपका 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, अगर आप कोई भी B2B मेंटेन नहीं करते हैं, आपका कोई भी B2B सेल नहीं होता है, लेकिन ओके। आप अपने सप्लायर को तो डेबिट नोट रेज करेंगे ना, कोई भी हाँ माल जी, आपने करेक्ट। परचेज किया है जी, उसको आप represent वापसी करते हैं। करेंगे। तो जब आप हाँ जी। सप्लायर को रेज करेंगे डेबिट नोट, इट विल कम अगेंस्ट अ B2B ट्रांजेक्शन, वो एक ओके। B2B ट्रांजेक्शन हो गया। उस अच्छा। केस में आपको, चाहे आप सेल का कोई भी ई इनवॉइस रेज नहीं कर रहे हैं, उस केस में अगर आपने सप्लायर को डेबिट नोट रेज किया है तो आपको सप्लायर को भी ई इनवॉइस रेज करके देना पड़ेगा फॉर दैट डेबिट नोट। ठीक है, दिस इज एज अच्छा, फार एज माय नॉलेज। मतलब अपने रिटेल बिल्स के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ जो सप्लायर्स को डेबिट ये करते हैं, या अगर कोई कस्टमर आता है कि भाई 1 लाख रुपए का माल लिया और मुझे मेरे फॉर्म में चाहिए, या मुझे जी एक्सपेंस हाँ, क्लेम करना है उसका, और मैं जी जीएसटी नंबर देता हूँ, तो फिर उसके लिए अपने को इनवॉइस रेज करना जरूरी है, अदरवाइज जी B2C वालों के लिए जरूरी नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। हाँ जी, तो हाँ जी, चलिए। मैं अब आगे बढ़ता हूँ, मैं शेयर करता हूँ अपना स्क्रीन और मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ जो जीएसटी कंसोल के बारे में है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। यस हाँ सर, जी। बिल्कुल सर। सो ये एक एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है जीएसटी कंसोल। जीएसटी कंसोल एक मिडिलवेयर एप्लीकेशन है जो आपके जेड ऑर्डर ईआरपी और आपके जीएसटीएन यानी कि जीएसटी नेटवर्क को लिंक करता है थ्रू आवर प्रोवाइडेड जीएसपीज। ये सब क्या चीजें हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन। जो आपका ई इनवॉइस या ई वे बिल रेज होता है वो आपके जीएसटीएन सर्वर यानी जो हमारे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नेटवर्क का जो मेन सर्वर है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वर है, वहां से ही सारा ई इनवॉइस और ई वे बिल रेज किया जाता है। जब आप कोई ई इनवॉइस रेज करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जीएसटीएन नेटवर्क के पास जाता है। वो आपको एक यूनिक आईआरएन नंबर प्रोवाइड करता है। वो आईआरएन नंबर आपको रिटर्न हो जाता है जिसको आप क्यूआर कोड के फॉर्मेट में प्रिंट करते हो और आपकी ई इनवॉइस जनरेट हो जाती है। तो असली जो मेन सर्वर है वो है जीएसटीएन सर्वर, लेकिन जीएसटीएन सर्वर डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस को स्पेशल लाइसेंसेस दे रखे हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन ही जीएसटीएन सर्वर को और उनकी एपीआई को कनेक्ट कर सकते हैं। उन ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जीएसपी। उनको बोलते हैं जीएसपी मींस जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर या एएसपी यानी एप्लीकेशन सुविधा प्रोवाइडर। तो ये सारे जीएसपी और एएसपी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिर्फ जीएसटीएन सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई भी कनेक्ट नहीं कर सकता है। फर्दर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जीएसपी, ये आगे फर्दर एपीआईज हमें प्रोवाइड करते हैं। जिस एपीआई का मतलब हुआ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिस एपीआई को कॉल करने के बाद हम ई इनवॉइस का डेटा जीएसटीएन सर्वर को भेज सकते हैं और वहां से जो भी आईआरएन नंबर या क्यूआर कोड हमें मिलता है हम उसको रिट्राइव करके अपने एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन जीएसटी कंसोल यही काम करता है। वो जीएसपी के एपीआई को कॉल करता है, वहां से डेटा गेट करता है और उनको डेटा सबमिट करता है। इन रिटर्न जो हमें आईआरएन नंबर मिलता है वो आईआरएन नंबर हमें अपने इनवॉइसेस पे भेज देता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर से ही आपका सारा ई इनवॉइस, ई वे बिल, ये सारी चीजें होती है। एवन फर्दर गोइंग, जब आप कोई ऐसे टूल लेते हो जो कि आपको क्लेम करता है कि जीएसटीआर या फिर जीएसटीआर 1 के रिटर्न्स ये सारे सबमिट हो जाएं, तो बैकग्राउंड में यही टेक्नोलॉजी काम कर रही होती है। ये तो दिखा तो रहा है जी, तो ये इसके लिए हमने एक टूल डेवलप किया है जिसका नाम है जीएसटी कंसोल। मैं एक बार जीएसटी कंसोल का डेमो एक बहुत ही क्विक मैं दे देता हूं, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चंस लूंगा। जीएसटी कंसोल को ओपन करने के लिए आपको सिंपली जाना है gstconsole.com। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड स्क्रीन आएगा जिसमें ये आपके बिजनेस के कुछ स्मॉल क्रक्स नजर आएंगे, टोटल इनवॉइसेस रेज एक्सेट्रा, टॉप सेलिंग कैटेगरी और ये वो। यहाँ पे एक बटन है ई इनवॉइस और ई वे बिल।
आप ई इनवॉइस पे क्लिक करेंगे, आपने ईआरपी में जो जो इनवॉइसेस बना रखे हैं, जो B2B इनवॉइसेस हैं, उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, जिसको आप व्यू कर सकते हैं। व्यू करने के बाद ऊपर एक जनरेट इनवॉइस का बटन है, आप सिंपली इस बटन को क्लिक करेंगे और आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। यू कैन डाउनलोड दिस ई इनवॉइस टू एनी पीडीएफ फॉर्मेट। ये पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया और फिर इस इनवॉइस को अपने एक्चुअल मेन इनवॉइस के साथ अटैच करके अपने पार्टी को भेज सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप है ई इनवॉइसिंग का। नेक्स्ट, अगर उसी तरीके से अगर आपको ई वे बिल रेज करना है, आप ई वे बिल वाले सेक्शन पे जाएंगे, आपके पास सारे ई वे बिल से रिलेटेड जो भी इनवॉइसेस हैं वो सारी लिस्ट में आ जाएंगी। आप उसको व्यू करेंगे, व्यू करने के बाद आप वहां से ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम हमने डेवलप किया हुआ है। ये छोटा सा टूल है। ये टूल आपके, अगर मैं बेसिक उस इमेज पे जाऊं, तो ये टूल आपकी ईआरपी में जो इनवॉइसेस बनी है उस इनवॉइसेस को सीधा जीएसटीएन के पोर्टल पे अपलोड कर देता है और वहां से जो भी रिटर्न या आईआरएन नंबर, क्यूआर कोड, पीडीएफ, ये सारी कुछ वो आपके सिस्टम में इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये जीएसटी कंसोल का एक छोटा सा टूल है। तो अभी जैसे सर ने बताया है कि हमारा जो ई इनवॉइस है वो कंप्लीटली आपके ईआरपी से लिंक्ड होना चाहिए। अगर हम पोर्टल पे जाकर के मैनुअली एक एक इनवॉइस को रेज करते हैं, इट विल टेक अ ह्यूज टाइम और उसके लिए काफी एक्सपर्टी की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिस फॉर्मेट्स को फिल करना जरूरी है। इंटरनल बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशंस हैं जो कि हम नॉर्मली, एक नॉर्मल इंसान जो कि बिजनेस कर रहा है वो उतनी बारीकी से उन सारे कैलकुलेशंस को नहीं कर सकता है। फर्दर उसके सारे वैलिडेशंस, वो वैलिडेशंस को नहीं चेक कर सकता है। तो अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर मेंटेन कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपको उस सॉफ्टवेयर वाले से डिमांड करना चाहिए कि हमारे सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट ई इनवॉइस रेज करने का प्रोविजन होना चाहिए। तो ये जेड ऑर्डर ईआरपी से, जो जेड प्रॉफिट का अकाउंटिंग एप्लीकेशन है और जेड ऑर्डर ईआरपी का ईआरपी एप्लीकेशन है, जिसमें आप रिटेल, होलसेल, स्टॉक ट्रांसफर वगैरह करते हैं, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये एप्लीकेशन में आप डायरेक्ट जो भी आपके इनवॉइसेस हैं, जो भी आपने इनवॉइसेस बना रखे हैं, उन इनवॉइसेस का आपका ई इनवॉइस जनरेट हो जाता है और फर्दर आप इस इनवॉइस को प्रिंट करके और अपने इनवॉइस के साथ अटैच करके और आपके कस्टमर को भेज सकते हैं। उसी तरीके से ई वे बिल का भी सारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जीएसटी रिजिम में आने के बाद, जब आप लोग जीएसटी में आ जाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है जीएसटीआर 2B का रिकंसिलेशन। तो इस टूल में एक प्रोविजन हमने ये भी दिया हुआ है कि अगर आपके पास, आपने जीएसटीआर 2B को रिकंसाइल करना है, आप सिंपली जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे, वहां से आपकी एक जेसन फाइल डाउनलोड होती है जीएसटीआर 2B की। अगर उसको इस टूल में आप इंपोर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो इन्वेंट्री यानी एप्लीकेशन के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उस ट्रांजेक्शन को सिस्टम ऑटोमेटिकली मैच कर देता है और जो जो डिफरेंसेस हैं वो सारे डिफरेंसेस आपको पिन पॉइंट कर देता है। तो ये एक छोटा सा टूल है जो एक बहुत ही हेल्पफुल है हमारे सारे क्लाइंट्स के लिए, जो कि अभी ई इनवॉइस में आए हैं या ई इनवॉइस ई वे बिल मेंटेन करना चाहते हैं। जीएसटी की मैक्सिमम चीजें, मैक्सिमम जो बर्डन है, जो आप ऐसा समझते हैं कि बहुत मुश्किल है ई इनवॉइस बनाना, ई वे बिल बनाना, उस मुश्किल चीजों को बहुत आसानी से ये रिमूव कर देता है। तो ये मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता था जो अभी हमारा जीएसटी कंसोल है। अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप gstconsole.com पे जाएंगे, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो बस यही था। अगर आपका कोई सवाल है तो मैं अभी उसको एड्रेस करने के लिए तैयार। थैंक यू सो मच रोशन सर, आपने जीएसटी कंसोल के बारे में बताया, कुछ हमारे कंफ्यूजन थी वो क्लियर हुई है। सर एक सवाल, क्वेश्चन है कि अगर हम ई इनवॉइस हमारा इशू हो गया है एंड देन उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट नेम चेंज करना क्या पॉसिबल रहेगा? सर ये काइंडली प्लीज इसका हमें बता दीजिए कि क्या इसका प्रोविजन रहेगा। देखिए, ई इनवॉइस रेज होने के बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए।
तो आइडियल केस में तो ये रहता है कि आप पहले सारी इंफॉर्मेशन फीड कर दीजिए, सारे इंफॉर्मेशन डाल दीजिए, उसके बाद ही ई इनवॉइस रेज करिए। क्योंकि उसके बाद अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो मॉडिफिकेशन करके एक तो दोबारा ई इनवॉइस रेज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने अभी ईवे बिल नहीं बनाया है, जैसे सर ने बोला कि ई इनवॉइस रेज करने के बाद आप ईवे बिल बनाते हैं, तो आप उसके ऊपर ट्रांसपोर्टर का नाम डाल करके और ईवे बिल रेज कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्रोवाइडेड दिस फैसिलिटी ऑल्सो यू ऑल्सो बी टेक एक्स्ट्रा केयर कि आप सारी जो चीजें हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन पहले आप फिल कर ले, उसके बाद ही ईवे बिल बनाए। तो नहीं सर, अगर हमारा ट्रांसपोर्ट नेम अगर ई इनवॉइसिंग हो गया है लेकिन ईवे बिल अभी जनरेट नहीं हुआ है, तो सर क्या उस केस में हम कर सकते हैं या उस केस में भी नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते। ओके, उस केस में कर सकते हैं अगर ईवे बिल जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन अगर ईवे बिल जनरेट हो गया है देन उस केस में हमें ट्रांसपोर्ट नेम चेंज नहीं कर सकते और हम ना ही ई इनवॉइस को हम चेंज कर सकते हैं। नहीं कर सकते, बिल्कुल। सर थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन था कि सर जीएसटी जो कैलकुलेशन टूल इज इंक्लूडेड इन जीएसटी कंसोल सॉफ्टवेयर, तो सर मैं ये कहना चाहूंगी कि सर जीएसटी कैलकुलेशन का टूल नहीं है जीएसटी कंसोल में। जीएसटी कंसोल एक जस्ट एक एप्लीकेशन है आपका ई इनवॉइस जनरेट करने के लिए और टू बी को रिकंसाइल करने के लिए। वहां पे सर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है, जीएसटी कैलकुलेट आपका ईआरपी में ही होता है। सर एक सवाल क्वेश्चन आया है कि क्या जीएसटी कंसोल इज कंपैटिबल विद जेड ऑर्डर ओनली या किसी भी ईआरपी के साथ हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? सर प्लीज इस पे बता दीजिए। जीएसटी कंसोल सिर्फ जेड ऑर्डर यूजर्स के लिए ही है। ये जेड ऑर्डर का एक एक्सटेंडेड टूल है। जेड ऑर्डर की एपीआईज और जीएसटी के जीएसपी के एपीआईज को दोनों को मर्ज करके ये एप्लीकेशन बनाया गया है। हाँ, हम ऑलरेडी इस लाइन लेंथ पे काम कर रहे हैं कि जीएसटी कंसोल को एक इंडिपेंडेंट टूल बना दिया जाए सो दैट ये बाकी किसी भी सॉफ्टवेयर से भी इंटीग्रेट हो सके। और करेंटली इट इज ओनली इंटीग्रेटेड विद जेड ऑर्डर। ओके सर, एक सर सा सवाल था राज सर का कि अगर क्वेश्चन को रिमूव कर देते हैं तो उससे भी फर्क पड़ेगा। सर ये क्वेश्चन अभी नहीं समझ आया है सर, काइंडली एक बार थोड़ा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। आप अनम्यूट होके सर ये काइंडली क्वेश्चन पूछ लीजिए क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा है। सर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम कोटेशन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, जो वो कोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं, Okay. कोटेशन। Okay. बेसिकली कोटेशन मैं बता देता हूँ। बेसिकली कोटेशन इज कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको लीगल माना जाए। सॉफ्टवेयर के अंदर कोटेशन एक सिंपल एक एस्टिमेट होता है जिसका कोई सेल इम्पैक्ट नहीं होता, जिसका कोई स्टॉक इम्पैक्ट नहीं होता। तो अगर आप कोटेशन बनाते हैं और उसको रिमूव कर देते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कोई भी ट्रांजेक्शन पे आप लायबल नहीं है। एक क्वेश्चन मेरा और था आपसे, जो हम जीएसटी आपके जेड ऑर्डर में हम इनवॉइसिंग करते हैं और टैली में फिर हम दोबारा उसको चढ़ाते हैं, अकाउंट्स टैली में होता है, तो उसमें भी उसकी एंट्री होएगी क्या? अगर आप ई इनवॉइसिंग टैली में करते हैं तो आपको फिर जीएसटी कंसोल में यूज करने की जरूरत नहीं। टैली, अच्छा नहीं, सेल तो हम सेल जेड ऑर्डर में है और अकाउंट्स हमारा टैली में है। तो आप बेटर है ई इनवॉइस डायरेक्ट टैली से ही करें क्योंकि वो आपकी अकाउंटिंग एंट्री परफेक्ट वहां से निकल रही है। सेम डेट पे जैसे अगर हम इसमें जेड ऑर्डर में बिल बनाते हैं तो उसमें भी पोस्टिंग करनी पड़ेगी? हाँ, सेम डेट में पोस्टिंग करके और सेम डेट में आप ई इनवॉइसिंग टैली से कर सकते हैं। अच्छा, और जैसे अभी तक चल रहा था कि मैं अभी हम बिलिंग कर रहे हैं और नेक्स्ट डेट में हम टैली पे पोस्ट करते थे, वो वही करना चाहिए या फिर अब सेम डेट पे करना चाहिए? देखिए, वो तो आपकी अकाउंटिंग प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप सेम डेट में पोस्टिंग करते हैं और सेम डेट में ही ई इनवॉइस रेज कर देते हैं तो ये सही, सबसे बढ़िया है। और जो इसमें परचेज में डेबिट नोट हम कस्टमर को भेजते हैं, सॉरी डेबिट नोट हम पार्टी को भेजते हैं, उसमें भी ई इनवॉइसिंग रहेगी? जी हाँ, जी हाँ, अगर आप डेबिट नोट पार्टी को भेजते हैं तो उसके अंदर भी ई इनवॉइस होना चाहिए। तो डेबिट नोट तो सर हम जेड ऑर्डर से ही करते हैं, वो टैली से नहीं करते। देखिए, कोई भी अकाउंटिंग एंट्री आधा नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधी अकाउंटिंग एंट्री जेड ऑर्डर में करें और आधी अकाउंटिंग एंट्री टैली में करें। अकाउंटिंग के लिए तो सारी की सारी अकाउंटिंग एंट्री एक ही जगह से करनी पड़ेगी ना सर।
सिस्टम तो अगर फिर दोनों आपने अलग अलग है ना, पूरा अकाउंट तो हम टैली में ही कर रहे हैं। हाँ, तो आपको सारा ई इनवॉइसिंग सारा कुछ टैली से ही करना चाहिए। मतलब पहले हम जेड ऑर्डर पे अपना डेबिट नोट बनाए, फिर पोस्टिंग करके वहां से ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल बनाए। बिल्कुल। ओके। मुकेश जी, आपका जो सवाल सर भी इनका बीच में क्वेश्चन अलग से और आया है कि लाइक अगर हम जैसे अभी ई वे बिल अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो उस केस में क्या इनवॉइस में चेंज कर सकते हैं? तो सर जब उनका ये था कि एचएसएन कोड में एरर आ सकता है, तो सर एब्सोल्युटली एरर आएगा इसलिए, लेकिन आपको जब आपने ई वे बिल ही कैंसिल कर दिया, ई वे बिल आपका नहीं बना था और अब आप ई इनवॉइस को रीमॉडिफाई कर रहे हो, चेंज कर रहे हो आप इनवॉइस को, तो ऑटोमेटिकली जब ई वे बिल बनाएंगे तो आप उसी एचएसएन कोड और ट्रांसपोर्टेशन आईडी के साथ ही आप ई वे बिल भी जनरेट करेंगे। तो उस केस में सर एरर वहां पे नहीं आएगा, वो दोनों मिसमैच नहीं होगा, वो दोनों सेम ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि अभी आपने ई वे बिल उसका जनरेट नहीं किया है। ओके मुकेश सर, एक सर क्वेश्चन और था आपसे सर जानना चाह रहे थे कि जो ई इनवॉइस है नॉट जनरेट विच विल हैव टीसीएस टैक्स। हाँ, टीसीएस के केस में ई इनवॉइस में इश्यूज आ रही हैं, वो पीछे जीएसटी के साथ ही इशू है, वो इशू रेज्ड है, और जैसे वो इशू रिजॉल्व होगा उसके अंदर टीसीएस वाले बिल्स में भी ई इनवॉइस जनरेट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग डिपेंड हैं पीछे जीएसपीस पे जो हमारी एपीआई प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी ऐसे ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं लाइक टीसीएस वाले बिल्स, तो वो सारे हम जीएसपी से हमें इनपुट लेना पड़ता है। तो अभी वो रेज्ड है, टिकट रेज्ड है, जैसे रिस्पॉन्स आता है उसको हम रिजॉल्व करेंगे। ओके सर, एक सवाल और था कि अगर परचेज के अगेंस्ट में डेबिट नोट इशू होता है एंड देन क्या उसका ई वे बिल और ई इनवॉइस इशू होगा? जी हाँ, मेरी नॉलेज के हिसाब से वो मैंडेटरी है। अगर आपने डेबिट नोट रेज किया है तो वो एक B2B ट्रांजेक्शन है और इसके अंदर ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों रेज होना चाहिए। ओके राइट सर। सर एक सवाल जो अभी एक सर है अर्का सर, वो बात कर रहे हैं सर, जीएसटी पे कोई भी डेटाबेस हमारा रहता है, हमारा कंट्रोल वहां पे नहीं होता। हमें यहाँ पे जब जीएसटी में हम लोग रजिस्टर करते हैं तो हमें हमारी टर्नओवर बेसिस पे हम लोग जीएसटी में रजिस्टर करते हैं। अगर हमारी 40 लाख की टर्नओवर रहती है तो हम जीएसटी में रजिस्टर हम कर सकते हैं, यानी कि जीएसटी सर्टिफिकेट हम ले सकते हैं। 40 लाख के बिलो अगर रहती है तो ऑप्शनल रहता है कि आप जीएसटी में रजिस्टर अपने आप को कीजिए। जब आप जीएसटी में रजिस्टर कर देंगे देन ये जो सारा प्रोसेस रहता है जीएसटीआर फाइल करने का या हमारी जो ई इनवॉइस बनाने का, जब आपकी 5 करोड़ की टर्नओवर हो जाती है तो ये जो भी सर डेटा रहता है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है ईआरपी में। सिर्फ जो डेटा हम बना रहे हैं, यानी कि बिल जो हम जनरेट कर रहे हैं, सेल बिल बना रहे हैं या परचेज एंटर कर रहे हैं, उस पे हमारा कंट्रोल रहता है। जब हमारा आईआरएन जनरेट होता है सर, वो जीएसटीएन सर्वर, वहां पे सर हमारा कंट्रोल नहीं है। वहां से हमारा सिर्फ डाटा फेच होके आता है, वो सिर्फ जो बिल की इंफॉर्मेशन होती है उसी को एक कोडेड फॉर्म में एक बिल के ऊपर प्रिंट होना होता है, ये की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे सर ये हमारा कंट्रोल नहीं है, जीएसटीएन का कंट्रोल है कि किस तरीके से बिल को चेंज करके उस फॉर्मेट में लेकर आना है। सर लास्ट एक सवाल और था सर, ई वे बिल कैंसिल इनवॉइस भी कैंसिल करना जरूरी है? अगर हाँ तो इनवॉइस रीजनरेट कैसे होगा? अगर हम ई वे बिल और ई इनवॉइस कैंसिल करते हैं तो आपको ईआरपी में भी उसका रिलेटेड इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप ईआरपी में इनवॉइस कैंसिल नहीं करेंगे तो सेम नंबर से आप ई इनवॉइस दोबारा जनरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक इनवॉइस बनाया, इनवॉइस नंबर है 523, ये इनवॉइस नंबर का आपने ई इनवॉइस भी रेज कर दिया, ई वे बिल भी रेज कर दिया। ड्यू टू एनी रीजन आपको लगता है कि ये हमें कैंसिल करना है, आपने ई वे बिल कैंसिल कर दिया, ई इनवॉइस भी कैंसिल कर दिया, और फिर अगर आप चाहेंगे कि मुझे इसी नंबर से दोबारा से ई इनवॉइस रेज कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो हमें पूरा का पूरा हमारा जो बेसिक ई इनवॉइस है उसको ही कैंसिल करना पड़ेगा। जो बेसिक हमारा ईआरपी के अंदर इनवॉइस हमने डाल रखा है उसको ही कैंसिल करना पड़ेगा और नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा, तभी हम बाकी दोबारा से ई इनवॉइस और ई वे बिल रेज कर सकते हैं। पूरा ट्रांजैक्शन सिंक्रोनस होना चाहिए सर, अनसिंक्रोनस ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ओके सर।
ओके सर, अरे तभी यार पहले ये एक देखो और ना, इनका बाद में इनवॉइस पूरा- आया है, क्वेश्चन आया है इनवॉइसिंग से रिलेटेड है कि ई इनवॉइस इज आल्सो मैंडेटरी इन होटल इंडस्ट्री, सो इन केस ऑफ होटल्स शुड बी यूज दिस सॉफ्टवेयर और वी कैन होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइक होटल। सर ये आपका जो क्वेरी है सर होटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, भाई वो इसका क्या था, इसको सर बिल्कुल सर हमारी जो सेल्स टीम है वो सर वो आपको सेव ऑफ भिजवा दीजिए आपको, सो दैट कि आपको कोई भी क्वेश्चंस होंगे या अगर हम उस चीज के लिए आगे बढ़ उसमें है प्राइस का आगे जरूर लेंस प्रोसीड वाइज करेंगे। 30 वाला लेना है। सर एक बस आखिरी सर अगर क्वेश्चन एंट्री बहुत करिए, उसके बाद तो हम आगे 20 वाला करते लेंस हैं, प्रोसीड करते हैं। बेच रहे हो तो 30 सर एक वाला लेंस क्वेश्चन है लेना कि है। मैम बिलो फॉर 50,000 अगर हमारी अमाउंट है इनवॉइस की, तो वहां पे क्या ई इनवॉइस मैंडेटरी है डेबिट नोट बनाते हुए भी? सर एक बार रोशन सर प्लीज काइंडली इसके ऊपर बता एक दीजिएगा। बार सवाल क्या है? सर अगर बिल हमारा जो इनवॉइस है उसकी वैल्यू 50,000 से कम की वैल्यू है, तो उसका अगेंस्ट में जो डेबिट नोट हम बना रहे हैं, तो क्या उस केस में ई इनवॉइस मैंडेटरी है? देखिए, डेबिट नोट अगर 1 रुपए का भी बनेगा तो उसका ई इनवॉइस बनेगा। 50,000 की जो लिमिट है या फिर जो अभी 1 लाख की लिमिट रिवाइज हुई है, उसमें एग्जैक्टली क्या है वो मुझे नहीं पता, पर अगर आपने वो जो 50,000 की जो लिमिट है वो ई वे बिल की लिमिट है, ई इनवॉइस की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने 1 रुपए का भी बिल बनाया है और आप उस ट्रांजेक्शन के अंदर है, B2B ट्रांजेक्शन है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ई इनवॉइस बनाना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही है रोशन जी, बिल्कुल सही है, 100%। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे कस्टमर होता है उसके लिए तो आपका जो कैश मेमो पे है B2B पे जब हम बिल बनाते हैं तो उसमें तो जनरेट ई इनवॉइस का ऑप्शन होता है, लेकिन जब हम डेबिट नोट्स क्रिएट करते हैं तो उसमें भी जेड ऑर्डर में कुछ ऐसा ऑप्शन होता है या फिर अलग से हमें साइट पे जाके बनाना पड़ेगा? सबके लिए जीएसटी कंसोल ही है। जीएसटी कंसोल अगर आप इवन अगर आप विंडो में क्लिक करके इनवॉइस रेज करते हैं तो बैकग्राउंड में उसका जीएसटी कंसोल ही कॉल होता है, ठीक है। ओके तो अगर अगर आप बटन क्लिक करते हैं तो भी वो बैकग्राउंड में जीएसटी कंसोल क्लिक करते हैं। ओके, मतलब जेड ऑर्डर के जरिए ही जीएसटी कंसोल खुलेगा? जी हाँ जी, ओके जो सर। जीएसटी कंसोल ही यूज होता है। अगर कहीं से बटन क्लिक किया तो बैकग्राउंड में जीएसटी कंसोल कॉल होगा, अगर आपने बटन क्लिक नहीं किया तो आप जीएसटी कंसोल में जा करके और उस नॉइस को रेज कर सकते हैं। ओके सर। सो और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। मनीष जी भी हैं लाइन पे, अगर कोई दोनों ऑडिट ट्रायल से रिलेटेड या इनवॉइस से रिलेटेड अगर मिक्स क्वेरी है तो हम लोग उसको एड्रेस करें, अदरवाइज विल मूव टू कंक्लूड दिस थिंग। सर एक क्वेश्चन सर अभी मुकेश जी सर पूछना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी सर प्लीज। रोशन सर, मैं ये कह रहा था कि जो हम लोग कैश मेमो का बिल काटते हैं रिटेल पीओएस में जाकर के, तो वहां पर भी क्या ई इनवॉइसिंग की कुछ ऐसी डायरेक्ट कॉल है कि हम वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट कॉल कर सके B2C में? B2C में तो ई इनवॉइस अप्लीकेबल ही नहीं है अंकित जी। हाँ, जब भी अप्लीकेबल है वो B2B इनवॉइसेस में अप्लीकेबल है, B2C में आपको इनवॉइस बनाना ही नहीं है। मतलब अगर टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है, चाहे आप ऊपर हो या नीचे हो, आपका अगर B2C बिजनेस है यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, सामने वाले ने आपको जीएसटी नंबर नहीं दे रखा है, तो आपको कोई भी ई इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। वो तो लेगा ही नहीं। ठीक है सर। हाँ, वो तो लेगा ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं। सर एक सर मेरा क्वेश्चन है। हेलो रोशन सर, जी बताइए। हेलो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो हमारा पॉइंट ऑफ सेल है, एक परचेज है जहाँ हमारा पीछे पार्टी से माल आता है, तो अगर हम वो माल रिटर्न करते हैं तब ई इनवॉइस हमें रेज करना पड़ेगा? जी हाँ, ई-वे बिल उस एंड समय, ई इनवॉइस। जी हाँ, वो आपका B2B ट्रांजेक्शन है, इसलिए आपको ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों रेज करना पड़ेगा। जी जी, थैंक यू सो मच। सर मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी, कि जो हम डेबिट नोट बनाते हैं, सपोज मान लीजिए कि हम 25 तारीख को डेबिट नोट बनाते हैं, तो वो सेम डे में ही ई वे बिल जनरेट करें या फिर हम 3-4 दिन के बाद भी कर सकते हैं? सर अभी तक जो परमिटेड, हाँ मनीष जी इसका आंसर देंगे प्लीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
जो ई इनवॉइस होता है हम सेम टाइम में बना सकते हैं या मैक्सिमम गवर्नमेंट ने 7 डेज का टाइम दिया है? जैसे कि आज आप B2B कर रहे हो तो सॉरी आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो, तो आप विद इन 7 डेज भी कर सकते हो। अभी के अभी कर लो, नहीं तो विद इन 7 डेज यू कैन डू। रोशन जी एक सवाल है मेरा आपसे। हेलो, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, सुन पा रहे सर, आप प्लीज बोलिए। रोशन जी, हम एक तो पीओएस पे काम करते हैं, एक प्रॉफिट पे काम करते हैं। हमारी सारी बिलिंग पर डे पीओएस पे होती है जी, और जो डेबिट नोट बनता है वो हमारा प्रॉफिट पे बनता है, ठीक है ना। अब पीओएस पे बिलिंग हो रही है, हमारी B2C बिलिंग होती है फुल डे। कभी हफ्ते में 15 दिन में कोई एक कस्टमर आया कि मेरी जो है जीएसटी नंबर डालो, वो B2B होगी, तो वो कैसे मैनेज होगा? मतलब उसके बारे में जानना चाह रहा था। जब आप B2C बिलिंग करते हैं और रेगुलर बेसिस पे आप B2C बिलिंग करते हैं, हाँ जी, लेकिन कोई कस्टमर कभी आ गया, उसको बोलते हैं कि मुझे B2B बिलिंग चाहिए, तो आप कैश मेमो मॉड्यूल में ही, हाँ कैश मेमो मॉड्यूल में ही टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जहाँ पे कैश मेमो नंबर आता है, अगर वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन नजर आएगा B2B इनवॉइस का, ठीक है। तो B2B इनवॉइस को क्लिक करके वहां पे आप B2B इनवॉइस रेज कर सकते हैं फ्रॉम विद इन द रिटेल काउंटर। आप रिटेल काउंटर से ही B2B इनवॉइस रेज कर सकते हैं। तो उस B2B इनवॉइस पे आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। 2280 जी, उस B2B इनवॉइस से सर दोनों का जो सीरीज है, B2C इनवॉइस और B2B इनवॉइस, दोनों की सीरीज अलग अलग चलती है। अगर आपने कोई B2B इनवॉइस रेज किया, उसके आगे सिस्टम प्रीफिक्स लगा देता है, B प्रीफिक्स लगाता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये B2B इनवॉइस है। और एक B2B इनवॉइस अगर आपका रेज हो गया, उसके ऊपर फिर आपको ई इनवॉइस रेज करना है। वो प्रॉफिट में जाके होगा, ई इनवॉइस जो रेज होगा वो प्रॉफिट में जाके होगा। नहीं, वो डायरेक्ट आपके जीएसटी कंसोल पे हो जाएगा। ये वही प्रॉफिट में, हाँ पॉस से ही हो जाएगा। पॉस में एक, जैसे मैंने अभी एक जो डेमो दिया है, वो हमारा मिडिलवेयर है, जो एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में जाकर के आपको ई इनवॉइस रेज करना होगा। तो हमारी B2B की इनवॉइस सीरीज और B2C की इनवॉइस सीरीज अलग अलग चलेगी? जी हाँ, अलग अलग चलेगी। ठीक, थैंक यू रोशन जी जी सर, आई थिंक सबकी कोई क्वेरी और नहीं है, तो हम आगे कंक्लूड करते हैं उस वेबिनार को। एंड किसी की सर कोई है तो मैं आगे सर कंक्लूड करें हम। 7 दिन के अंदर अंदर आपको वो क्वेश्चन नजर आ रही हैं। एक पवन जी का क्वेश्चन है, अगर B2B रिटेल इनवॉइस का ई इनवॉइस और ई बिल जनरेट करते हैं पर B2B का रिटर्न आया, तो क्या हमें उसके लिए भी ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा? मनीष सर आप एक बार इसको एड्रेस करें प्लीज, कि अगर B2B का रिटर्न आता है तो क्या उसका भी ई इनवॉइस रेज करना पड़ेगा? मनीष सर क्या चीज था? जब एक बार फिर से बताइएगा। अगर B2B इनवॉइस का रिटर्न आता है, क्रेडिट नोट बनता है हमारा, सेल्स रिटर्न होता है, तो उसका भी इनवॉइस रेज करना होगा, सेल्स रिटर्न का। तो जब सेल्स रिटर्न का रहा है तो हाँ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंज्यूमर है या सॉरी जो आपको करके दे रहा है, या तो B2B में अगर आ रहा तो वही आपको इनवॉइस करके देगा ना ई इनवॉइस, तो फिर आपको क्यों करना है? या दो, इस एक इनवॉइस पर तो एक ही आदमी करेगा ना। सपोज कि आई हैव परचेज समथिंग फ्रॉम योर साइड और मुझे कुछ लौटाना है, तो मैं तो फिर हम दोनों का जीएसटी नंबर है, तो मैं तो उसमें इनवॉइस करके दे ही दूंगा, तो फिर आप थोड़ी करोगे दोबारा ये इनवॉइस उस पर। मतलब सर जैसे हमने उसको क्रिएट करके दिया था, वो हमें दे रहा, तो वही क्रिएट करके देगा ना? वही देगा ना, क्योंकि देखो हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। जैसे आपसे मैंने 5 लाख का माल खरीदा और 50,000 का माल मेरे को अच्छा नहीं लगा, डिफेक्टिव मिला, तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब मैं आपको भेज रहा हूँ तो आपको तो पता नहीं कि मैं कौन कौन सा आइटम भेजूंगा नहीं भेजूंगा। तो जब मैं क्योंकि नोट में क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं ही ई इनवॉइस करूंगा और ईबे बिल की रिक्वायरमेंट हो तो मैं ही करूंगा। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने सिस्टम में एंट्री कर लेना है, नथिंग एल्स।
पर वो एंट्री तो B2B में ही होगी ना, सेल रिटर्न जो जाएगी। हाँ B2B में ही आएगी, लेकिन उसमें आपको ई इनवॉइस नहीं करना, क्योंकि उस पर ऑलरेडी आप इस तरीके से समझ लो कि जब आप किसी से परचेज करके लाते हो माल, तो उस पर तो ई इनवॉइस लग के आता है, तो क्या आप दोबारा इनवॉइस करते हो? नहीं करते हो, तो वही चीज है। वो लिस्ट पूरी बन जाती है, तभी तो वो लिस्ट। रोशन जी, जैसे हम डेबिट नोट बनाते हैं पार्टी से डिस्काउंट वाला, मैंडेटरी कर दिया हम एक आइटम उठा के डालते हैं जी। वो कैसे मैनेज होगा? मतलब जैसे पार्टी में डिस्काउंट देती है, कोई डिस्काउंट इशू के रेट डिफरेंस हम बनाते हैं। वो रेट डिफरेंस डेबिट नोट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, रेट डिफरेंस डेबिट नोट एक तरीके का सर्विस डेबिट नोट हो गया, और उस डेबिट नोट के ऊपर भी आपको इनवॉइस रेज करना पड़ेगा। सर एक सवाल था, जो डेबिट नोट हम बनाते हैं डिस्काउंट का, उसमें हम एक आइटम डालते हैं, अगर हम आइटम न डाल के हेड बना दे रेट डिफरेंस का, और उसमें जाके हम वैल्यू चेंज करें, क्योंकि सामने वाली पार्टी कहते हैं कि अगर आप आइटम डाल रहे हो तो वो GR बन गया, यानी माल वापिस हो रहा है, तो माल तो वापिस हो नहीं रहा है। देखिए, उस केस में आपको एक रेट डिफरेंस नाम का एक फिक्स कोड बना लेना चाहिए, हाँ, और उसके थ्रू ही आप डेबिट नोट करना चाहिए। तो वो आप एक आइटम रेट डिफरेंस के नाम से ही बना लीजिए, और उसके थ्रू आप रेट डिफरेंस कर लीजिए। वो कैसे बनेगा सर? टिकट डाल दी वो बन जाएगा। फिक्स कोड बना सकते हैं सर आप, बिल्कुल। ठीक है, आप आर्टिकल में फिक्स कोड भी बना सकते हैं उसका। ठीक है, थैंक यू। हेलो जी सर, जी सुशील मेरा जी। रोशन जी से एक क्वेश्चन था। रोशन जी, जो जी। ऑडिट ट्रेल के मामले में था, जी। तो जो जैसे हम पोस्ट वो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, तो जो डेली की सेल होती है वो सेम डे पोस्ट करनी जरूरी है या कभी भी पोस्ट कर सकते हैं उसको? इसमें एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये बहुत सारे हमारे क्लाइंट की क्वेरीज भी है कि हम लोग जो भी सेल कर रहे हैं वो हमारे ERP में सेल कर रहे हैं, लेकिन हम उसको अकाउंट्स में बाद में पोस्ट करते हैं या फिर हम टैली में पोस्ट करते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आप मॉडिफिकेशन पोस्टिंग से पहले करेंगे, यानी कि ये डेली काउंटर पे आपके यहाँ पे बहुत सारी चेंजेस होते रहते हैं, कस्टमर ही कोई बिल होल्ड करवा देता है, या कस्टमर का नाम चेंज हो जाता है, वो कभी मोबाइल नंबर चेंज हो गया, कोई कस्टमर बिल बनने के बाद इमीडिएटली बोलता है कि मुझे ये आइटम नहीं चाहिए, हटा दो। तो पॉइंट ऑफ सेल पे बहुत सारे चेंजेस डे टू डे बेसिस पे होते रहते हैं। तो अगर वो चेंजेस अगर आप पोस्टिंग से पहले कर लेते हैं तो आपको कोई ऑडिट ट्रायल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑडिट ट्रायल में जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर आपने वो एक बार पोस्ट कर दिया, अकाउंट में चला गया, फिर आप उस बिल को मॉडिफाई करते हैं काउंटर पे, तब जाकर के वो ऑडिट ट्रायल मेंटेन हो जाएगा और उसका रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा सिस्टम में। तो जो भी चेंजेस करना है बिल में वो पोस्टिंग करने से पहले करें। तो सुशील सर, आपका जो क्वेश्चन है कि क्या उसी दिन पोस्ट कर लेना चाहिए या डे आफ्टर पोस्ट करना चाहिए, वो आपके ऊपर है, किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन जब आप पोस्ट कर दें अकाउंट में उसके बाद आप बिल में मॉडिफाई ना करें, क्योंकि जब वो रीपोस्ट होगा। जी, पोस्ट कीजिए, मैंने 1 अप्रैल को बिल काटा और मैं उसको 30 अप्रैल को पोस्ट कर रहा हूँ, तो अकाउंट्स में वो 1 अप्रैल डेट उठाएगा, 30 अप्रैल उठाएगा? नहीं, 1 अप्रैल ही उठाएगा, 1 अप्रैल उठाएगा। 1 अप्रैल उठाएगा, ठीक है, थैंक यू। सर, एक क्वेश्चन था जो अभी पहले भी एड्रेस हो चुका है पवन जी का, इज ई इनवॉइस इज मैंडेटरी इफ ब्रांच ट्रांसफर विद इन एन स्टेट। तो सर ने ऑलरेडी इसको आंसर कर दिया है कि अगर आप स्टेट के अंदर सेम GST नंबर पे स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हो तो वो आपका ब्रांच ट्रांसफर है, उस पे ई इनवॉइस मैंडेटरी नहीं है। सर आई थिंक सबके इश्यूज एड्रेस हो गए हैं। एंड सरका सर, जो आपको बैलेंस शीट और स्प्रेडशीट रिलेटेड है सर, प्राइसेस एंड टोटल जो आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पर्सनली आपसे कॉल करके आपकी क्वेरीज को कि सर ये जो बैलेंस शीट वाला पार्ट है ये सब पार्ट है सर, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, एंड वी विल एड्रेस ऑल। आपके जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेंगे पर्सनली कॉल पे।
तो सर ये चीज के लिए मैं हमारी जो टीम है, मैं टीम से कॉल कोऑर्डिनेट करवा दूंगी सर आपके लिए। तो आई थिंक सर अभी और सबकी क्वेरी सॉर्ट आउट हो गई हैं। हेलो रोशन सर, एक क्वेश्चन है। जी सर बताइए सर। जी प्रॉफिट में हम एक जनरल एंट्री करते हैं जीएसटी की, और हम उसको डिलीट कर देते हैं, उसका भी रिकॉर्ड जाएगा क्या? जी हाँ, जाएगा। ठीक है। बड़ी तो एक बार उसके पास जाना पड़ेगा, ये उससे पूरी क्लास लेनी पड़ेगी, वकील को देंगे ना, लेंगे आपको तो देंगे, लेकिन इससे भी तो समझना पड़ेगा। हाँ जी सर। ऐसे भी बड़े रिटेलर्स जुड़े हुए हैं सर। कुछ राजेश सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से एक सारी क्वेरीज एड्रेस हो चुकी हैं, सो वी कैन कंक्लूड नाउ। यस सर, बिल्कुल। कंक्लूड करते हैं इस वेबिनार को सर। लाइक सब पार्टिसिपेंट ये लगा लो। तो सर हमारा जो वेबिनार रहा सर, बहुत एक अच्छा वेबिनार रहा, एंड थैंक यू ऑल फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। एंड आई थिंक आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं हमने सॉर्ट आउट किया है। कुछ ऐसी अलग से सर और आपकी किसी की भी क्वेरीज रहती है सो काइंडली आप हमें मेल पे हमें कर सकते हैं। एंड सर प्लीज काइंडली डोंट फॉरगेट टू फिल अ फीडबैक फॉर्म सो दैट वी विल value your opinions or suggestions. So we hope you have a fantastic day. Thank you so much everyone. Informative session. Thank you so much. थैंक यू नितिका, थैंक यू रोशन जी, बहुत बढ़िया। Thank you so much sir. और You all are welcome. Thank you very much. थैंक यू। Thank you, Z-Order team. It was a wonderful session. Thank you everyone. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Okay. Thanks, Z-Order team. So much sir. Okay sir, thank you. थैंक यू सर।